Honorable Speaker, sir, through you I would like to ask the Honorable Minister, PHE and Water Supply, in regard a supplement I would like to add, because as per his reply, he has said that the proposal is on the process and consideration of the state government. Mr. Speaker, sir, I think my request and also the instructions which have been given for creation of separate subdivisions of the public health division throughout Arunachal Pradesh. I think even in your constituency also there may be. Now what has happened is it has been 3 years, and this government, led by Shri Pema Khandu, our Honorable Chief Minister, our Deputy Chief Minister Shri Chonaman, and the rest of the cabinet, we have heard that there is good governance. It is more of a governance than a government. And the e-files are very prompt, and I must really congratulate that, sir. But sir, I can't understand that this process has been going on since the last 3 years, which could have been done in just 3 minutes, and the latest proposal had been given 3 months back, and it is pending, I don't know where. Is it with the officers, or it is with the advisor? Is it with the Honorable Minister? I would request the Honorable Minister that as we already have the e-file system, which just takes seconds, not even minutes, if you're online, I would request you, will you approve the Bilat subdivision of the public health engineering? Because I should not ask for a subdivision, I should ask for a division, because my constituency is more than most of the districts, bigger than the districts. In fact, now Depumoli, Detak, Sido and Korang has been included into my constituency by the goodness of the cabinet decisions, and such a vast area cannot be controlled from Pasighat. So I would request you, will you give me assurance that as you're very prompt in your work, you'll be giving it this within 3 minutes, sir. Thank you, sir. Speaker, sir, ये जो जितना भी प्रोसेस होता है वो प्रोसीड्यूर से ही होता है, और every analysis studies has to be made on the ground. ये 3 minutes का काम नहीं होता है. तो वैसे भी मैं ऑनरेबल मेंबर को सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि हिंदी में भी कहावत है कि इंतजार का फल मीठा भी होता है. मीठा भी होता है. तो ये एक्चुअली आपका फाइल जो है डिजिटल ई फाइल में नहीं है, ये हार्ड फाइल में है. तो पूरा सारा डाटा कलेक्शन में समय लग गया है. वो करके अप्रूवल न्यू डिवीजन या सब डिवीजन का अप्रूवल मेरा लेवल में नहीं होता है. तो मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी को मैंने सबमिट कर दिया है. तो इतना ही मैं आपको सर सप्लीमेंट्री सर दूंगा. सर मेरा एक सुझाव है सर, क्योंकि अभी नहीं, जैसा हमने कहा बहुत अच्छा यहाँ गवर्नेंस है. फाइल्स जो होता है सर वो 3 महीना तो नहीं रुक सकता है सर. मैं खुद फॉलो किया हूँ, खुद रिक्वेस्ट भी किया हूँ. ऑफ कोर्स सर्टेन रीजंस के लिए ही कुड नॉट बी इन ऑफिस, बट हाउ कम a file can be kept in an office for 3 months, sir? I'm telling you, sir, you know that, I know it, it's an open secret. But please clarify that why has it been kept in a person, ऑफिसर्स का भी कहीं कहीं तो सर गलतियां होती है, लेकिन उस गलतियों को हम लोग सुधारने के लिए हमको कोशिश करना है ना. उसको प्रोटेक्ट भी मत कीजिए, उनको बोलिए फाइल लाइए, हम अप्रूव करेंगे. थैंक यू सर. स्पीकर सर, मैंने ऑलरेडी कह दिया कि कुछ डाटा कलेक्शन में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए उसी हिसाब से थोड़ा सा डिले हुआ होगा. लेकिन मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मेंबर से कि आप सब क्वेश्चन ये सेशन में पहुंच देंगे, अगला सेशन में आप क्या पूछेंगे.
Start question 39. Sri Wangling Luangdo. Speaker, sir, my start question number 39 relates to the construction of connecting roads to the villages. This particular area, which I have mentioned in my start question, 13 villages are located in one of the most interior places of the state, and also the least developed, not only in Tirap district, but I think of the entire state. And if this connection of road covering these 13 villages does conceptualize, then I presume, and I'm optimistic, that a lot of fruitful developments as far as agriculture, horticulture, and other economic forums will take place. In regard to this connectivity, the PWD had proposed for the construction of this road covering 13 villages to connect it with Assam, and wherein as far as 2018-19, it was given in the priority list number 36. However, after that, in spite of my repeated persuasions, nothing has come up. So I would request the Honorable Deputy Chief Minister, who is in charge of Minister Planning, as to what steps will he undertake to at least prioritize this road once again, so that the least developed areas of the state, and particularly in my area, this particular location as far as it's concerned, so that they will also see the fruits of development to the construction of roads. Thank you, sir. Mr. Speaker, sir, the road in question was recommended to the Donor Ministry way back in 2018 for consideration, but it could not be prioritized. Although we have sent on priority basis from Government of Arunachal Pradesh to the Donor Ministry, during 2018 it could not be prioritized there in Donor Ministry. Again, subsequently, it was sent in 1920 again for an amount of 20 crore, but it could not be prioritized again. Again, thereafter, it was submitted with a revised estimate of 36 crore for sending it to the Donor Ministry. But by that time, the state level empowered committee has already done the homeworks for sending the schemes to the Donor Ministry. So it was little bit delayed. So it missed out this time also. But I would like to ask Honorable Member that he never had spoken verbally with me. I know this is on priority. I know this list on priority sector. And at the same time, Tirap and the Longding district is now in the tourism map. So the road communication and other development activities has to take place in Tirap and Longding district also. We understand that. So definitely we will take it on priority, and we will send it in the next financial year. And I'm very hopeful that it will be done. Thank you. Start question number 2, Sri Lombotang. Mr. Speaker, sir, reply
जैसे फर्निश किया तो इससे सर सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हुआ. The reason is in the second last third para, government replies the proposal was kept in draft SADA 2022 to 23 as new scheme, but due to paucity of fund, it could not be materialized. सर अभी सादा का बोलो, SIDF का बोलो, CCI का बोलो, अभी तो कहीं कुछ फाइनल तो नहीं हुआ है. तो इसमें कैसे एडवांस में आ गया कि मेटेरियलाइज कर नहीं पाया. देन लास्ट पैरा में फिर लिखा सर रिप्लाई में, सब्सिक्वेंटली द फ्लड डैमेज रिपोर्ट हैड बीन सबमिटेड टू DC Deputy Commissioner East Siang District Pasighat District Disaster Management Department for placement of fund. Sir, this should have been a government reply. ये तो लगता है कोई डिपार्टमेंट का कोई डिविजनल लेवल से बनाया हुआ रिप्लाई को वेरी लाइटली इसमें कर दिया है. इट सीम्स टू बी ए वेरी वेरी मिसलीडिंग रिप्लाई टू दिस अगस्त हाउस. सरकार कैसे DC का वहाँ डैमेज रिपोर्ट सबमिट करेगा फॉर प्लेसमेंट ऑफ फंड. हालांकि सरकार DC का वहाँ DC का डिस्पोजल में जरूरी होगा तो फंड प्लेस कर सकता है स्पीकर सर फॉर इम्प्लीमेंटेशन. इसलिए मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इस प्रकार की है कि जितना डैमेज हुआ है री इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए एंटायर villages of Namsing Circle of East Siang and entire villages of Paglam subdivision under Lower Dibang Valley. तो उसको री इलेक्ट्रीफाई करने के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट से क्या सरकार अभी इमीडिएट फंड प्लेस करेगा? नहीं तो पूरा डार्क में एक सब डिवीजन एक सर्कल हेडक्वार्टर अभी है. यही एक तो मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर. मंत्री जी. मेरा पहला रिप्लाई तो है यह मिसलीडिंग नहीं है. मुझे बोलने का तो है ना, मैं अभी बोल रहा हूँ. कैसे मिसलीडिंग बोलेगा? मैं मिसलीडिंग बोलूँगा तो वो मिसलीडिंग होगा. मैं तो मिसलीडिंग नहीं करूँगा ना हाउस को. आई एम रिप्लाइंग नाउ. हैव पेशेंस. आई एम गोइंग टू गिव द रिप्लाई, प्रॉपर रिप्लाई नाउ. इन एनी केस, whenever honorable MLA comes to me with flood damage and all this, I always extend my possible help to him in his area. You can ask, anybody can. सेक्रेटरी ये क्या है लाइट का? डीजी सेट कौन चलाता है? आगा थोड़ा थोड़ा जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. ये कनेक्शन ये नहीं आ रहा है ना माइक्रोफोन वगैरह. सिस्टम में नहीं आ रहा. Please you may continue. And I would like to again request, I can hear the beep of cellular phone still, despite my request on the day one. At least put it on flight mode or switch it off. You can attend the emergency, calls later after the session. This is most important part of your, profile.
Please. क्या इस पे नहीं आ रहा है ना ये उड़ गया Start question 31, Sri Karikokri. ऑडियो है कि नहीं उधर अध्यक्ष जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो जवाब दिया है काफ़ी हद तक संतोषजनक है, फिर भी मेरा थोड़ा सा सप्लीमेंट्री थोड़ा डालेगा उसमें। तेजू एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। जब अरुणाचल में 1970s में 5 दिन हुआ करता था, उस समय का वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रोड कम्युनिकेशन, स्कूल, मेडिकल बिल्डिंग्स बहुत अच्छा से अंडर द ट्रैवल लीडरशिप ऑफ चल रहा था, बहुत अच्छा से काम चल रहा है। लेकिन अभी एकदम पतला वाला, एकदम महीन वाला चिंताजनक है फ्लैट। If I am not wrong, last time Honorable Deputy Chief Minister 3 May 2022 को विजिट किया था। शायद विजिट नहीं हुआ था, अमित इंडिया हॉल में वीडियो क्लिप्स Honorable Deputy Chief Minister को हम लोग डेमो दिखाया। How the people of Jeju Sondra फ्लैट से हम लोग सफर कर रहे हैं, जो मिल मेट्स है, एग्रीकल्चरिस्ट है, कैसे करके इस पार से उस पार जा रहा है, हम लोग ने डेमो दिखाया। Again, 8 May 2022 the visit of Honorable Minister W.R.D. तेजू आया था। उन्होंने काफ़ी साइट देखा। यूपीएस कनेक्शन भी कैसे जिस जगह में Honorable Minister खड़ा था, वो साइट को अभी आज का तारीख में वो साइट को पूरा खत्म हो गया। जहाँ हम लोग ऑफिसर्स एंड सर का साथ जितना भी टीम्स आया था, वो जो लोकेशन कंप्लीटली वॉच हो गया। इसका विषय में लास्ट असेंबली में भी हमने क्वेश्चन राइज किया। अगेन द मैटर ऑफ Honorable Chief Minister
अगर सर अगर इसको हम लोग टाइम पे हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, कृषि बंगलों बहुत खतरा में आगे जाने वाला है। अगेन तेजू टाउनशिप, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, एग्रीकल्चर फार्म्स, इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी जितना भी रोड है सब वॉच आउट होने वाला है। जो अंजाव को भी कनेक्ट कर रहा है, वाकरो को कनेक्ट कर रहा है, ये जो तेजू नाला ब्रिज है ओनली 5 to 6 मीटर्स लैप हो गया, बचा हुआ है सर। दिस इज फॉर योर नॉलेज सर, बताना जरूरी है। अगेन तेलुलियांग विलेज एंड 3 डोलोंग टीयर कैम्प, ये भी इम्पोर्टेंट इनहिबिटेट्स है, मतलब जहाँ के विलेजर्स एंड हम लोग का इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो ये भी हम लोग का जाने वाला है। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ने यहाँ में दिया है कि TSC अप्रूव हो गया। द स्कीम हैज़ बीन सबमिटेड टू दी सेंट्रल वाटर कमीशन एंड जल शक्ति। तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि इसको फॉलो कौन करेगा, ये स्कीम को ऑनरेबल मिनिस्टर और उनका टीम फॉलो करेगा या कोई स्पेटस उसके लिए रखा हुआ है। तो इसको जल्द से जल्द नहीं होने से हम लोग तेजू टाउन खतरा में होगा। तो सर से हमारा ये दरख्वास्त होगा कि ये कब तक ये कर पाएगा, और ये क्या हम लोग अगले सेशन में फिर क्वेश्चन उठाना पड़ेगा ना, क्या ये दूसरा बार मैं उठा रहा हूँ। तो सर से यही जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, ये ऑनरेबल मेंबर्स स्टार क्वेश्चन नंबर 31, वैसे तो जो आपका प्रश्न का जो उत्तर है मैंने पूरा आपको दिया हुआ है, फिर भी सदन की जानकारी के लिए आपके थ्रू, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम हमने पर्सनली तेजू में हमने विजिट किया और वो जगह को भी देखा कि ऑनरेबल मेंबर ने जो अभी जिक्र किया सदन में, ये उसको अगर फ्लड प्रोटेक्शन के लिए अगर टेकअप नहीं करेगा, तेजू टाउन जो है थोड़ा दिक्कत होगा। और मैं जाके पर्सनली देखा है वो लोहित रिवर, तेजू टाउन में जो लोहित रिवर है, अभी क्या हुआ कि भारत सरकार ने EFC एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमीशन में 2021 को 4,500 करोड़ जो पूरे देश के लिए जो अप्रूव किया गया है, जिसमें से 2021 to 2026 तक FMBAP फ्लड मैनेजमेंट बॉर्डर एरिया प्रोग्राम, उसके तहत, इस स्कीम के तहत पूरे देश भर में और अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने, सरकार ने, और ये स्टेट को मार्क नहीं किया अभी तक। ये स्कीम में ये पूरा स्टेट को, ये स्टेट को इतना फंड देगा, ये स्टेट को इतना फंड देगा, भारत सरकार से अभी मार्क नहीं किया है। लेकिन भी आपका जो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, जो आपका ये जो तेजू में जो लोहित रिवर में जाके दिखने के बाद इस साल में 131.95 CR का सरकार ने और डिपार्टमेंट की ओर से हम लोगों ने यहाँ से TSC एंड स्टेट फ्लड बोर्ड के तहत हम लोग क्लियर करके स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों ने भेज दिया। यहाँ से भेजने के बाद अभी जो हाइड्रोलॉजी CWC के अंदर मिनिस्ट्री में वो पड़ा हुआ है, सेंट्रल वाटर कमीशन में। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टेट से जितने भी जो स्कीम आया है, हर डिस्ट्रिक्ट से, सिर्फ तेजू ही नहीं, पूरे जितने भी स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से जो आया हुआ स्कीम को 3,900 CR का हम लोगों ने यहाँ स्टेट से TAC करके भारत सरकार में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में हम लोगों ने भेज चुका है। तो इसलिए हम लोग जरूर उसके लिए पूरा कोशिश कर रहा है, सरकार पूरा कोशिश कर रहा है। और लास्ट टाइम ऑनरेबल CM सर ने भी पर्सनली हमको बोला कि डिपार्टमेंट और हम लोग जाकर इस बार मिनिस्ट्री में, जल शक्ति मिनिस्ट्री में हम लोग जाकर उसको परस्यू करेंगे। हाँ,
ये बात सही है कि पूरे देश में, सिर्फ प्रदेश में बोल के नहीं, पूरे देश भर में इस बार ऐसा फ्लड हुआ कि असम में हुआ, अरुणाचल में हुआ। हम लोग उसके लिए काफ़ी चिंतित है, सरकार उसके लिए चिंतित है, मुख्यमंत्री जी उसके लिए चिंतित है कि किस प्रकार से इस फ्लड को किस प्रकार से हम लोग लोगों को बचाव के लिए हम लोग काम करें। तो इसलिए मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स, आप लोगों का जो जो प्रपोजल आए हैं वो बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग TIC क्लियर करके हम लोगों ने मिनिस्ट्री में भेज दिया, और वहाँ में जाकर हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी हम लोग फॉलो करेंगे। और आप लोग भी कभी दिल्ली जाते तो आप लोग भी साथ में हम लोग के साथ उसको सैंक्शन करवाने के लिए फॉलो अप कीजिए। थैंक यू। Start question 5, Sri Ninongere. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को अवगत करना चाहता हूं कि इनके जो जवाब है ये हर बार एक ही जवाब देते हैं। इंक्वायरी चल रही है और हम भी उसको मानते हुए आए। अब जो ये इशू है, अब तो 2 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक वो जो इंक्वायरी का रिपोर्ट यहाँ तक हमको इस सदन में कुछ नहीं किया गया है। हमने कहा था कि इस सदन में उसको पेश करना चाहिए। पिछले सदन में मैंने कहा था कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं उनको सबको नौकरी से उनको निकाला गया था, हमारा जो प्रश्न था इस सदन में कि क्या यहाँ जो हमारे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या SSB का कोई मान्यता है कि नहीं। और उसी विषय पे जब मैंने पूछा कि यहाँ कोई इलीगल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं, तो उसका जांच पड़ताल हुआ और बाद में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए कि जो SSB के नहीं होके भी उनका अपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन हम उसका अपॉइंटमेंट के खिलाफ नहीं है, हमारे अपने ही बच्चे हैं और खासतौर ये सब बच्चे बहुत गरीब घरों से आए हैं, तो उनका पेट में लात मारना ये गलत बात था सर। हम पहले भी बोला कि मेरा प्रश्न वो नहीं था, मेरा प्रश्न था कि क्या इलीगल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, अगर हो रहा है तो किस प्रकार हो रहे हैं। अब ये प्राइमा फेसिया केस हो चुका है, वो साबित हो चुका है। सर आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और अभी हाल ही में जो कलकत्ता में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण जो हम न्यूज़ में मीडिया में देख रहे थे कि हमारे एक शिक्षा मंत्री का उसका अरेस्ट होना, ये सब गलत बात है। हमारा अरुणाचल में हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जितने भी उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, खासतौर हमारा तबत सर को मैं मानता हूं और मैं जानता हूं ऐसा प्रकार का आदमी नहीं है। लेकिन जब नीचे में जब बातें चर्चा चलती है तो हमको भी दुखित होता है। हम यहाँ आए इस सदन में, इस मंदिर में अपना वक्तव्य है या अपना जो हमारे जो अपना एरिया का, अपना पब्लिक का सेवा करने हम आते हैं। तो इसलिए सर ये जो अभी जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं पूछ रहा हूं आपको कि अभी दो साल हो चुका है सर। हर बार मैं इस क्वेश्चन को सदन में लाता हूं। पिछले बार मैं बोला था मैं अभी से नहीं पूछूंगा, लेकिन खुद हमारे इस फ्लोर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि नहीं, इसका अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता उसको आप दोबारा लाइए। मैं उच्च न्यायालय को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले बार जब हमने इस सदन में उठाया था कि नहीं, बच्चों को क्यों उनका नौकरी का उसका पेट में हम लात मारेंगे, तो उनका भी जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी आए हुए हैं। और अभी भी मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री से भी उस विषय में मैं जानकारी ले रहा था कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर्स है उच्च न्यायालय का, कि इनको जो जिस प्रावधान थे उसको नौकरी में अपॉइंटमेंट देने का, उसका वो नहीं जानते, लेकिन उनको रीइंस्टेट करने के लिए ऑर्डर आ चुका। तो ये बहुत अच्छी है, खुशी की बात है। ठीक है, SSB को ओवर रूल कर लिया,
अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस को ओवर रूल किया है, बट इट इज गुड फॉर द चिल्ड्रन, क्योंकि दे आर वेरी पुअर पीपल, दे कम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली बैकग्राउंड, बिकॉज दे आर ऑल फ्रॉम ईस्ट सियांग मैक्सिमम, क्योंकि अन्य जिलों में ये नहीं हुआ है, बट ओनली इन पासीघाट एंड इन ईस्ट सियांग। सो मेरा यही आपसे प्रश्न है कि क्या when there is a prima facie case already proved, already cash for job has already taken place, जमीन लिया गया है, नदियां ली गई है, मोरांग ली गई है, खेती ले गई है, मनी लिया गया है, वो प्रूफ है। और हम यहां इस सदन में और कितने बार बोलूंगा मैं, अगर ये प्रूफ नहीं है तो मुझे चैलेंज करो, हमको डिफेमेशन केस दो, लेकिन प्रूफ है। और लेकिन बच्चों ने क्यों कष्ट करके इसको किया? सर ड्रग एडिक्ट जब ड्रग एडिक्शन होता है तो हम लोग जो ड्रग एडिक्ट बच्चों को हम लोग उसको कंसल्टेशन करते हैं, उनको हम रिहैब में भेजते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पेडलर है उसको तो पकड़ना चाहिए ना, या एटलीस्ट कम से कम तहकीकात कीजिए, हमको एक रिपोर्ट चाहिए, इस सदन में हमको एक रिपोर्ट प्लेस कीजिए। तो मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री को उनका काबिलियत पे मैं तारीफ करता हूं, लेकिन फिर भी इसमें क्या घटना है कि अभी तक उसके पर एसआईटी या एसआईसी भी नहीं लागू हुआ है, या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, क्योंकि प्राइमरी फेसिया केस इज ऑलरेडी बीन प्रूफ, उसका क्यों नहीं अभी तक जवाब दे रहे? धन्यवाद सर। मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, is there question number 5 supplementary by Honorable MLA Nenu जी? सर आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल मेंबर को ये बताना चाहूँगा कि ये जब रिपोर्ट आई तो हमने जो भी कार्रवाई करना था हमने सर कार्रवाई की, और इसके लिए हमने इंक्वायरी ऑफिसर भी लगाया, इंक्वायरी ऑफिसर भी दिया, प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी दिया, चार्जशीट भी किया, लेकिन उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया जब इंक्वायरी ऑफिसर शुरू किया कि जब रिटायर ऑफिसर को एज पर पेंशन रूल के हिसाब से हम डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकते, उसके लिए प्रेसिडेंशियल सैंक्शन चाहिए। तो इसके तहत हमने दोबारा उसको प्रेसिडेंशियल सैंक्शन के लिए फाइल प्रोसेस करके फिर प्रेसिडेंशियल सैंक्शन ऑर्डर लेके फिर हम दोबारा सर हमने इंक्वायरी ऑफिसर दोबारा सेटअप कर दिया, उसके बाद साथ ही साथ हमने प्रेजेंटिंग ऑफिसर दे दिया और चार्जशीट भी फ्रेम करके चार्जशीट भी आर्टिकल ऑफ चार्जेस भी हमने दे दिया। इसके तहत हमने 4 जुलाई को हमने इंक्वायरी ऑफिसर को नियुक्त किया गया है, आर्टिकल ऑफ चार्जेस हमने दे दिया है, और उम्मीद उसके बाद दोबारा अगस्त महीना में 1 महीना के बाद तुरंत हम दोबारा इंक्वायरी ऑफिसर को लिखा कि इसकी जो भी इंक्वायरी है तुरंत कीजिए और तुरंत हमें सब रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। इसके तहत जब ये इंक्वायरी चली रहा है उसकी, क्योंकि एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम 1 साल तो चला गया, फिर अभी इस बार जो भी हमने किया है जितना भी कार्रवाई हम लो बेटिंग करे या सब कुछ जो भी करना, जो प्रोसीजर जो लेप्सेस था पहले, वो प्रोसीजर लेप्सेस को हमने इस बार में पक्का बना के हमने अभी आर्टिकल चार्जेस फ्रेम किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो इंक्वायरी ऑफिसर उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट हमें सौंपेंगे। और मेन टाइम कोर्ट के एक ऑर्डर आया, जितने भी लोगों को 31 लोगों को जिसको भी निष्कासित किया गया, टर्मिनेट किया गया, उसको दोबारा रीइंस्टेट करने के लिए, तो विदिन 3 वीक्स में हमें करने के लिए 28 अगस्त का हमें एक जजमेंट आया। तो इसके तहत हम अपनी स्टैंडिंग काउंसिल से अपने लॉयर से डिस्कस करके इसके आगे हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कि हम दोबारा चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या हम उसकी और कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए हम तहत करेंगे। और मैं आपकी सर स्पीकर आपके माध्यम से मैं इस ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहूँगा कि हम अब तक किसी को बख्शा नहीं गया, जितना भी हमारे सामने में आया, जो भी फॉल्ट किया उसको एक्शन लिया गया है, जो भी ऑफिसर को अपॉइंट किया उसको टर्मिनेट किया गया है, और आज तक जो गलती क्या है, जो रिटायर्ड डायरेक्टर है उसको भी आज तक पेंशन नहीं दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा पनिशमेंट में 2 साल हो गया उसका पेंशन हम अभी तक रुका हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट हमें आ जाएगा, उसके बाद जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट आता है इस पर सीएस कंडक्ट रूल में हम जरूर एक्शन लेंगे। Start question 46, Shri Tapu Taku.
sir, question number 46 reply that due to shortage of officer in the grade, no officer could be posted as ADCAC in SIPA headquarters. सर ये मैं कहना चाहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में जब प्रॉब्लम तो एक है जो शॉर्टेज है, लेकिन सर हमारा डिस्ट्रिक्ट में इस कमिंग में आप सभी मालूम है जोग्राफी के लिए बहुत है, आउटपोस्ट रिमोट एरिया है, वहाँ पे सीओ नहीं है। इवन हेडक्वार्टर में डीसी है, सिर्फ एक ही डीसी है, तो एडीसी नहीं है, ईएसी नहीं है। क्यों अभी लास्ट ईयर रिसेंटली 3 तो आया है, कितना है, तो जिस कारण से काफ़ी कामकाज जो है रुकावट होता है। और किसी साहब भी कभी कभी एक्सप्रेस करता है कि यार हम एक डीसी है, इतना इस कमिंग में हम पियोन का काम भी हम ही करना पड़ता है, ऑफिसर्स का, अबू का, एडीसी का, हम अकेला, इसलिए हमको बहुत तकलीफ है। आप लोग थोड़ा उसको ध्यान दीजिए। तो हम लोग ने टीम इस कामिंग का तरफ से भी नोट देख के साथ ऑनरेबल सीएम साहब को सबमिट किया है, लेकिन शॉर्टेज का कारण से आज तक ये पोस्ट सेट नहीं होने के कारण से हमारा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जरूरी है। तो इसलिए ये हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि जो शॉर्टेज ऑफिसर है सर, उसको आप लोग पोस्ट क्रिएशन के लिए कुछ स्टेप ले रहा है क्या ना? ये जो हमको जरूरी एडीसी ईएसी तो सर जरूरी को कब तक पोस्टेड कर देगा? क्योंकि अभी हेडक्वार्टर में बहुत से काम है कि एसटी का इशू करना, पीआरसी इशू करना और बहुत कुछ डॉक्यूमेंट जो नीड ऑफ जो ट्रैवल आदमी का जरूरी को देना है, लेकिन ऑफिसर शॉर्टेज के कारण से वो टाइमली कर नहीं पाता है। इसलिए इसको हम लोग बार बार लेके दिया है, तो आज सदन में लाया सर। इसलिए मेरा सप्लीमेंट है कि ये सब पोस्ट कम से कम कुछ हेडक्वार्टर में तो 1-2 एसी, 1-2 और एडीसी देने से भी चलेगा, लेकिन अभी उसको हम लोग कब तक आप ये प्रॉब्लम को ऑफिसर देंगे, मैं जानना चाहूँगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो ऑनरेबल मेंबर का जो कंसर्न है रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन सिपा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इसके लिए ऑलरेडी पर्सनल डिपार्टमेंट का साथ में मेरा मीटिंग चल रहा है। जहाँ जहाँ ऑफिसर शॉर्टेज है वहाँ पे ऑफिसर भेजने का। तो होपफुली विद इन दिस मंथ इटसेल्फ, सितंबर महीना तक जो भी यहाँ से ऑफिसर हम लोग बेयर मिनिमम जो भी यहाँ से हम लोग भेजेंगे, उसका आई थिंक बाय सितंबर हम लोग आपका डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग कर पाएंगे। Start question 41, Sri Wangling Long. Speaker sir, start question number 41. The Honorable Minister Education pertains to the frequent transfer of teachers from Tirap district. The reply given is not very appropriate, wherein it states that the pressing reasons for transfer and posting of teachers is a normal process which the department does every year. Herein I would like to state, especially as far as Tirap district is concerned, I feel the nomenclature of normal does not suffice, it is abnormal.
because hardly a few months of teaching profession in the schools of Tirap district, maximum 1 or 2 years, they get transferred. They're also without relievers. Their answer itself states that we provide relievers. 15 teachers have been transferred, TGT and PGT, in the last 2 years, without any relievers. As recent as a month back, 5 teachers from Bodria High Secondary School have been transferred without any relievers, excepting for one, which is in Hindi. In spite of my written complaints to the department to withhold this transfer and to add insult to injury, another 2 more teachers of TGT, Economics and English have been recently transferred. They're also without any relievers. Now, what is the idea of the Department of Education as far as the schooling and education in Tirap district is concerned? Do they want that the schools in Tirap district should close, stop functioning? How can the classes be without the teachers? And when we say that give priority to education, I feel that this must be given due importance. And every moment and every reply states that we will be appointing new teachers of PGT and TGT. That is a very normal process of replying, which I do not adhere to. And I feel that some formula should be made out as to how long a teacher can stay in that particular area. And if a teacher stays for only hardly a few months and gets transferred without any relievers, how can the schools function? Or if that is the case, then I think the ultimate case would be that appoint teachers from the district only. All teachers should be appointed district-wise. And let the district, there are many educated people around, technically qualified. Your supplementary advice you can give in writing and give it to the department. No, since he's given that reply, so I have to... No, I understand, but what is the supplementary? Because, narrative will take a lot of time. Yeah. Whether the concerned department will provide the relievers before any transfer takes place, and as to how soon. Because without the relievers, it will be difficult for the teachers to be released. Honorable Minister. Honorable Speaker, sir. Sir, question number 41, supplementary raised by honorable members. सर आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी की जो टीचर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो होता है उसके लिए हमने पहले तो हम कमेटी नहीं बनाया था, जो भी आता उसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रोसेस कर देता, लेकिन हमने जब भी कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है उसके लिए हमने कमेटी सेटअप कर दिया अंडर द चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, अंडर सेक्रेटरी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, जॉइंट डायरेक्टर्स DDSE। तो ऐसे करके हमने कमेटी सेटअप करके कमेटी थ्रू ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग हम करता है। और जो हर एक टीचर की जो टेन्योर है तो मिनिमम 3 इयर्स रहना चाहिए। और इस बार हमने देखा कि इस बार बहुत टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ मुझे बता रहा है। तो टीचर की हमारे स्कूल एजुकेशन में 3,768 TGT एंड PGT टीचर्स है, उसमें सिर्फ हमने 270 टीचर्स का ट्रांसफ़र पोस्टिंग, विच इज़ नॉट इवन 10%, बिलो 10% के टीचर का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है। और इसमें जो तिराप में जो कहता है कि रिलीवर नहीं देता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करता है, सर जब भी हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जब करते हैं हमें उस टीचर की कंडीशन को देखना पड़ता है कि टीचर रिप्रेजेंट करता है, टीचर का कभी कभी फैमिली बैकग्राउंड को देखना पड़ता है, उनका टेनर को देखना पड़ता है, उनका हेल्थ ग्राउंड को देखना पड़ता है, मेडिकल ग्राउंड है, ऐसे पॉलिटिकल ग्राउंड है, बहुत सा ऑब्लिगेशन होता है। जब भी सर टीचर रिक्वेस्ट करता है
तो बोर्ड की तरह है, उसको सर टीचर को हमने स्क्रूटनी करता है करके। अब तिराप की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया, इस पर 11 टीचर्स की तिराप डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया। एक दो तो म्यूचुअली करता है, एक दो सब अपने से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद से भी हम लोग उसमें ऑर्डर में क्लियर कट लिखता है कि आपको ट्रांसफ़र होगा सब्जेक्ट टू रिलीवर जब ज्वाइनिंग करेगा। जब आपका रिलीवर ज्वाइन करेगा तब आप उसको वहाँ से रिलीव करना है। और स्पेसिफिकली सर इसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन डीसी और डीडीएससी को भी दिया है, जब तक रिलीवर नहीं आता है उसको रिलीज नहीं करना है। और सर रिलीवर हमारे पास जैसे रिलीवर हमने सर इसमें रिप्लाई में ये भी लिख दिया कि हमारे पास जो पीजीटी टीजीटी की 400 प्लस की जो टीचर रिक्रूटमेंट होगा उसमें जैसे होगा उसके लिए हम रिलीवर देगा, तब तक जब तक रिलीवर नहीं आता रिलीज करने के लिए हमसे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसलिए मैं सर ये कहना गलत है कि हम तिराप डिस्ट्रिक्ट को नज़रअंदाज करते हैं, स्कूल क्लोज करेंगे। सर हमारे लिए पूरी अरुणाचल में जितना भी स्कूल है सब हमारे स्कूल है। एज शिक्षा मंत्री के नाते उसकी वेलफेयर देखना, उस बच्चे को वेलफेयर देखना, टीचर को वेलफेयर देखना हमारे शिक्षा विभाग की हमारी ड्यूटी है। इसलिए हम कहीं भी ऐसे नहीं करते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट को हम नज़रअंदाज कर दिया, ऐसे नहीं है। जितना भी टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं जेन्युइन ग्राउंड को देखे स्टडी करके, मेडिकल ग्राउंड में टेन्योर हो गया है या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, वो सबको करते हुए हम ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। और माननीय सदस्य ने ये पूछा कि रिलीवर कब देगा। रिलीवर हमारा जैसे हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन हमने ऑलरेडी रिक्वेशन दे चुका है, साल भर हो गया, जैसे रिक्रूटमेंट होगा हमसे रिलीवर देगा। और जब तक रिलीवर नहीं आएगा वो रिलीज नहीं करना सर। And the assurance given by Honorable Minister that without any relievers, no transfer, release will take place. But wherein I would also like to state that teachers in particularly, or maybe other posts also, when they are posted to Tirap district, they do join. Some of them join for a week or a month. Everybody has a problem. We are all human beings. So every problem, if we take into cognizance all the problems and listen, keep on listening to them, and based on the problems we keep on transferring them, then what will be the outcome of the education system in the state? So I feel that the seriousness should be there on the part of the education department. Has the There teacher should be been a formula. has the teacher been relieved from your school without the reliever? No, we have told them not to release. The Yeah. DSC So to release. then minister is right. So you still have teacher right now. So once the reliever comes, then only you will get transferred out. Let them find a reliever. there's And no if you problem. have any advice or suggestion, you can give in writing to the department how to improve the, your transfer posting policy and system, because you have all been also education minister once upon a time. I I think think that will almost help a every lot. district has the same problems because Yeah, I know. All the lot of districts and remote places have the similar kind of problem. Right. So we can, do a comprehensive planning, how to, come out with a very effective transfer and posting policies. we have to Anyway, live with this problem. Thank you, sir. so you want to reply? सर ऑनरेबल स्पीकर से रिप्लाई देने के लिए तो नहीं, उन्होंने बहुत सजेशन नहीं दिया, और सजेशन को हम वेलकम करते हैं। ठीक। Supplementary, sir. कहाँ है? The supplementary. हाँ, बोलिए। Honorable Speaker, sir, some years back, I remember this House had already adopted a resolution for exoneration of transfer and posting of teachers in view of these problems that is being faced throughout the state. And therefore, I would like to ask the Honorable Minister whether we have already established the mechanism to ensure that there is rationalization in transfer and posting of teachers in Arunachal Pradesh. Honorable Speaker, sir, supplementary raised by honorable members. Sir, टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग की जो ये गाइडलाइंस है, एक्ट है, ऑलरेडी असेंबली पास कर दिया है। टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी ऑलरेडी लागू हो चुका है, और इसके लिए लागू हम अभी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी हमने सर ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है। सॉफ्टवेयर डेवलप करके अभी हम जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी टीचर हैं उसमें अपने अपने बायोडाटा को अपलोड करने के लिए बोला है। और ये जो 30 सितंबर तक हमने डायरेक्शन दिया है कि जितने भी अरुणाचल में हमारे टीचर हैं वो अपने अपने बायोडाटा डिस्ट्रिक्ट में अपलोड करना है। और जैसे अपलोड हो जाएगा, जो आने वाले एकेडमिक सेशन में जब हमारी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, जो हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी 1920 का जो ये है पॉलिसी है, उसको हम
सॉफ्टवेयर तरह हम लागू करेंगे जिसमें हम कोई ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा ना हमको इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। उसमें से सॉफ्टवेयर में जहाँ जहाँ टेन्योर हो गया जिसे, क्योंकि उसमें 3 जोन में क्या है, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन के हिसाब से। जब क्योंकि अपर जोन में मिनिमम 5 to 7 ईयर्स सर्विस देना है, उसकी जो 35 to 37 ईयर्स का सर्विस में, उस प्रकार से जो ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी है वो सर आने वाले समय में सर लागू हो जाएगा। Start question 17, Sri Lombatang. आपका वो same question ही है. Are you satisfied with the reply? I think it's about rationalization of teacher posting. Sir, I will take only 2 minutes. Sir. You have additional supplementary. Okay. Sir, Speaker sir, reply के मुताबिक in entire East Siang district we have 14,204 pupils and teacher posted is 1,310 and therefore the pupil teachers ratio is 1:11, whereas it should have been 1:30. 1:30, sir. 1:30. 30. You have 1:11. No, mine is 1:11, sir. So you are very lucky. We then. have surplus. But I have to think for the other place of the people, Okay. other people of this. He is a very generous member, so you can take note of that. Sir, as per ratio, if we calculate, we want 473 teachers in East Siang district. Therefore, still we have 837 surplus teachers there. So Here, sir, what I found, as per the reply furnished by the government, there is one school. It's a very funny report, sir. The government primary school Danang Moru is already closed. There is 0 enrollment, whereas one teacher posted there. What is the use of that teacher? Then secondly, sir, Seram, in same village, Seram, there is one government upper primary school, Seram, where upper primary school, Seram, where the enrollment is 34 and teacher posted is 8. What is the use of that 8 teachers for the 34 students? That is in my consultancy. Then again, in the same Seram village, one school was created under SSA, which is called Government Primary School, Kangkong, Seram. There are 74 students enrolled, sir. And again, posted only 2 teachers. For 74 students, 2 teachers posted. And for 34 students, 8 teachers posted. Is it the system of rationalization of the teachers? ये समझ में नहीं आया, इसलिए सप्लीमेंट्री के तौर पे पूछ रहा हूँ. और सर, it may hurt some other members like my Iring Saab and then Moyong Saab also. So I do not like to hurt my colleagues. इसलिए मेरा अपना ही एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ. सर, मेरा जगह पे Boda, one school is there called Boda, where the enrollment is 10 and 2 teachers. Sigar 15, 4 teachers. Awali 7, 3 teachers. So the ratio, pupil teachers ratio is 1:2. लेकिन उस जगह में ऐसा एक जगह है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कांगकोंग इन सेराम, उसका रेशियो होता है 37, सर. तो इसीलिए मेरा यही पूछना था
कि ये रैशनलाइजेशन पॉलिसी ऑलरेडी इसमें रिप्लाई दिया गया इन सी वेदर टीचर पोस्टिंग इज रैशनलाइज, गवर्नमेंट रिप्लाई यस। तो ये सब रैशनलाइज, इज इट द वे, इज इट द सिस्टम ऑफ रैशनलाइजेशन? अगर ये है तो क्या रैशनलाइजेशन पॉलिसी को स्क्रैप करेगा? इफ नॉट, इसको कौन ऐसा डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन वहाँ टीचर्स रैशनलाइजेशन पॉलिसी का कर रहा है तो उसका ऊपर क्या एक्शन देगा? ठीक, आपके वहाँ से कुछ लॉन्ग रूम साहब का भेज दो, बहुत दुखी है वो। तो ये अच्छा है, देने वाला से है, मांगने वाला से नहीं है, तो आप जवाब दे दीजिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, सप्लीमेंट्री जो रेज किया है सर, इस सियांग में ये 39 मेबो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सर 33 स्कूल्स है, 38 पासीघाट में सर 45 स्कूल्स है, और 37 पासीघाट वेस्ट में सर 50 स्कूल्स है। अभी रैशनलाइज की जो ऑनरेबल एमएलए ने कहा कि जितना भी इस सियांग में जितना भी जो टीचर्स की पीपल्स पीआरटी जो है वो कहीं में भी सर 25 या 20 से ऊपर नहीं है, क्योंकि टीचर जो यहाँ हमेशा बोलते हैं कि शॉर्टेज ऑफ टीचर, टीचर की सर हमें जो कमियाँ होती है सिर्फ वो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में है। अदरवाइज हमारे प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल में टीचर के कहीं में भी शॉर्टेज सरप्लस ही है। तो ये इस सियांग में भी जो अभी जितना भी स्कूल गिनती किया है सब उसमें आपकी किसी में सिर्फ रेशो जो 5% है, 3% है, 4% है, 10% है, ऐसे करके एंटायर एक्सेप्ट एक स्कूल ये जो मेबो में 37% एक है, 38% आपका ये है, यूपीएससी मीर विलेज में सिर्फ 38%। अदरवाइज जितना भी स्कूल में सर टीचर की सरप्लस है। और ये जो है आईएसएस के टीचर है, आईएसएस के टीचर को सर हम डिस्ट्रिक्ट के बाहर हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सर उसमें जो डिस्ट्रिक्ट में जो टीचर है इसमें वहाँ में जो रेशो के सबसे ज़्यादा है। अगर अदरवाइज अगर हमको इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करना है तो हम उस टीचर को दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भेज सकता है, नहीं भेज के जो प्राइमरी अपर प्राइमरी में जितने भी टीचर आईएसएस का वजह सर इसका जो पीटीआर में सर बहुत कम है सर, यही है कारण। अगर उसमें अगर कहीं कहीं में अगर शॉर्टेज है, कमती है, टीचर की दरकार है, ऐसे अगर हमें नौबत आएगा तो हम जरूर उसको रैशनलाइज और उसको जरूर एक्शन में लेंगे सर। सप्लीमेंट्री सर। सर हाँ, एजुकेशन में सर दिस इज शॉकिंग रिविलेशन कि इस सियांग में 400 से अधिक ओवर स्टाफेड है और हम लोग चैंगटाजो वाला तो मांग के परेशान है। लास्ट 2 ईयर से सर हिस्ट्री ज्योग्राफी का टीचर नहीं है बोल के मैं 3 टीचर वहाँ अपॉइंटमेंट दे के रखा हूँ। मेरे एमएलए लेट से मैं अकोमोडेट करके पेमेंट देता हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल चैंगटाजो के लिए। और गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को समझते हुए ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। रिसेंटली सर चीफ मिनिस्टर शिक्षा कोष योजना के तहत कुछ फंड भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में दिया है। लेकिन अनदर शॉकिंग न्यूज़ ये है हम लास्ट 2 ईयर से प्राइवेट टीचर्स को पेमेंट दे के मेरे स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इस फंड के तहत डीडीएसी का कुछ कमिटी ने गठन करके टीचर ऐसे अपॉइंटमेंट किया जिसका अनरेटेड टीचर्स है और उस अपॉइंटमेंट करते हुए हम लोगों को लोकल एमएलएस को बताया भी नहीं। मैं तो आई एम कास्टिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पर्शन ऑन देम, यहाँ भी कहीं केस फॉर जॉब तो ना हो। ये रिसेंटली का बात, कल परसों का ही बात है। हम लोग इतना मेहनत से लास्ट 2 ईयर से ये इतना तकलीफ से स्कूल को चला रहे हैं, डीडीएसी का इतना तक भी काटसी नहीं है कि ये जो सीएम शिक्षा कोष योजना के तहत जो फंड आया है कम से कम बताए और उन लोगों को पेमेंट करे। और जो 2 टीचर मुझे भेजा है ज्योग्राफी का प्रोनाउंसिएशन भी करने नहीं आता, तो ऑब्वियसली इट इज ए केस फॉर जॉब होगा ही।
ऐसे टीचर्स को हमारे वहाँ बेच कर क्या करेंगे? दूसरा चीज़ ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ISSE में समग्र शिक्षा, जिसमें कुछ टीचर्स का पोस्ट खाली है इस कमिंग में, और कुछ ग्रुप डी का, उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट DC का नेतृत्व में शायद वॉक इन इंटरव्यू का किया, जिसमें एक रिवीलिंग शॉकिंग न्यूज़ ये है कि जो इंटरव्यू में सिस्टम रिक्रूटमेंट रूल ये बनाया कि 80% मार्क्स जो है, मार्क्स रिकॉर्डेड मार्क्स क्लास 10 में, 12 में, ग्रेजुएशन में जो मार्क्स मिला है उसका बेसिस में एसेस करेगा, और 20 मार्क्स जो है ओरल का वो होगा। ये तो मेरा ख्याल से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रूल के बाहर है। क्लास 10, 12, ग्रेजुएशन में तू मार्क्स, ऐसे हालत में तू जो रेगुलर यूनिवर्सिटी वाला से तू जो डिस्टेंस एजुकेशन वाला ही ज़्यादा मिलेगा, तो कहाँ से क्वालिटी एजुकेशन आएगा इस मार्क्स का बेसिस में अगर अपॉइंटमेंट करेगा तो? इग्नू वाला तो 100 का 100 मिलने वाला भी है, हम लोग जो रेगुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाला कम मार्क मिलते हैं। किसने ये रूल बनाया कि 10, 12 और ग्रेजुएशन का मार्क्स का बेस में 80% का वो देना चाहिए, मेरिट बनाना चाहिए? ये भी रीथिंकिंग करने का है, और ये अभी तक रिजल्ट आउट भी नहीं हुआ है, शायद इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है। इस चीज़ पर एजुकेशन ऑनरेबल मिनिस्टर को मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ, इसमें आप रीथिंकिंग करने से ठीक है। थैंक यू सर। Honorable Speaker, sir, start question number 17, supplementary raised by Honorable MLA Aing Mansur ji. सर, हमने शुरुआत में कहा कि जो टीचर्स की कमियां हैं वो हमारी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में है, और हमारे प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी में टीचर की कमियां कहीं स्कूल में नहीं है। अभी जो हमारे ऑनरेबल MLA ने क्वेश्चन रेज किया वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने MLA लेट से चैंग टाउजर में 3 टीचर को अपॉइंटमेंट करके MLA लेट से दिया, और मुझे भी जानकारी है, मुझे बताया भी है। तो इसको इस साल हमने मुख्यमंत्री शिक्षा कोर्स के तहत जहाँ जहाँ भी सब्जेक्ट टीचर की दरकार है, स्पेशली PGT टीचर को तो हमने सब दे दिया है, और TGT टीचर साइंस एंड मैथ्स, उसके लिए जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट आया है डिस्ट्रिक्ट में 245 जो टीचर की रिक्वायरमेंट था पूरे अरुणाचल से जितने भी DDS से आया, उसको हम लोग ने सर सेंक्शन करके सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा है। और उसमें हम लोग ये निर्देश दिया है कि DDSE और प्रिंसिपल हेडमास्टर अपना अपना उसमें इंटरव्यू कंडक्ट करके वॉक इन इंटरव्यू करके उसको टीचर को अपॉइंट करें। तो अभी जो उन्होंने बताया कि जो कुछ टीचर अपॉइंट किया सही सलामत सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ऐसे तो अगर रिपोर्ट है तो हमें दे दीजिए, हम जरूर एक्शन लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर के लिए हम धनराशि 25-25 हज़ार करके महीने में देने के हम लोग वादा किया और पैसा भी रिलीज कर रहे हैं, और जहाँ में भी शॉर्टेज है उस टीचर को हम लोग को दे दिया है। और दूसरी बात, उसने IS की जो टीचर की इंटरव्यू की बात कहा, क्योंकि हमने सब डिसेंट्रलाइज कर दिया, जितने भी IS के टीचर अपॉइंटमेंट में तो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में करें। उस डिस्ट्रिक्ट में DC चेयरमैन होता है, DDS उसके उसी हिसाब से बोर्ड पतन होता है। उसमें हमारे यहाँ से जो सेंट्रल से हमने सरकार की तरफ से निर्देश दिया है कि जितना भी रिटन एग्जाम नहीं है, वाइवा बस वर्क एंड इंटरव्यू है, इसलिए उसमें जो हम 80% जो है मार्क्स क्लास 10, 12 डिग्री या MA डिग्री जो भी करते हो उस डिग्री को 80% मार्क्स में जाना है, और सिर्फ 20% ये वाइवा बॉस में जाना है बोल के। पहले ऐसे होता है कि वो सिर्फ बिना कंडीशन देने से वो सिंपल जैसे जैसे पास करने वाला 33%, 34% मिलने वाले बच्चों को डायरेक्ट इंटरव्यू करके 80% वाइवा में नंबर देके उसको रिक्वेस्ट करता था, करके फिर टीचर्स बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, इसलिए बहुत सारी तकलीफें आया, इसलिए उसको देखते हुए ये कंडीशन लगाया है। अभी अगर ऑनरेबल MLA ने ऐसे अभी 1-2 इनके अलावा और 1-2 ऑनरेबल MLA ने भी आके बताया कि जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उसकी परसेंटेज तो कम होता है, जो ओपन में जो करता है उसकी मार्क्स ज़्यादा होते हैं, उसके लिए उसको रिव्यू करने को बोला। अगर ऑनरेबल अगर कोई सजेशन देता है तो हम इसको कार्रवाई करेंगे सर। The question hour is over now. We'll take up short duration discussion. Sri Haing Mangfi may make a short statement on the matter regarding non-regularization of
नॉन टेक्निकल स्टाफ, ये नॉन टेक्निकल स्टाफ कौन सा चीज़ का है? हेल्थ का। ओके। Speaker sir, through you, I would like to draw the kind attention of the government towards the pathetic plight of non-medicos staff. Non-medicos means non-technical, serving under various vertical program of health department, sponsored by government of India for regularization and absorption of their services in line with the state of Assam and Manipur. The vertical programs under health department are National Vector-Borne Disease Control Program, National Tobacco Control Program, Integrated Disease Surveillance Program, National Tuberculosis Elimination Program, Clinical Establishment Act, State Blood Sale, State Blood Transfusion Council, AYUST, National Mental Health Program, Arunachal Pradesh State AIDS Control Society, Health and Wellness Center, National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases, etc., National Program for Health Care and Elderly, National Program for Prevention and Control of Deafness, Arunachal Pradesh State Dental Council, Arunachal Pradesh State Nursing Council, etc. Sir, to begin with, I would like to quote the line of American author Helen Keller: "The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart." Sir, yesterday I was hearing the response of Health Minister in the issue raised by Ninungering sir in the Geo Hour, in the same matter, but that was particularly for NHM. But today I am raising the issues for all concerned. सर, यहाँ तो एक पिताजी के पास दो बेटा अगर हो, एक मेडिकल डिग्री होल्डर हो, दूसरा बीए हो, मेडिकल डिग्री होल्डर को वो तो डॉक्टर बनेगा, उसको इंसेंटिव देना है, और जो बीए होल्डर को सर छोड़ के जाना है क्योंकि वो आर्ट्स का बैकग्राउंड है। यहाँ बात वही सही चीज़ वही हो रहा है। जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, जो नॉन मेडिकल स्टाफ है, सेम प्रोग्राम में, वर्टिकल प्रोग्राम्स में सेम टाइम में अपॉइंटमेंट हुआ, सेम टर्म ऑफ रेफरेंस है, सेम कंडीशन है, लेकिन ओवर द टाइम जो टेक्निकल है, जैसे नर्सिंग है, डॉक्टर है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आया है, उनको फेज मैनर में एब्जॉर्ब किया गया अरुणाचल में। लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ को 20-22 साल भी हो गया है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये तो सर मेरा ख्याल से कहीं ना कहीं पॉलिसी में छूट है। थोड़ा जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है वो भी हमारा ही भाई बहन है, अरुणाचल का ही वासी है। वेलफेयर स्टेट का, वेलफेयर गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है कि हर क्षेत्र का, हर वर्ग का लोगों का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ये जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, इनका अपॉइंटमेंट भी बहुत सही ढंग से किया है, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करके, पूरा आपको वाइवा वोस करके, रिटन एग्जामिनेशन दे के, जितना प्रोसीजरल जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है पूरा मेंटेन किया है। लेकिन आप देखा होगा ये हमारा कोविड के चलते भी, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो, नॉन टेक्निकल स्टाफ हो, जितना भी हेल्थ वर्कर कहा जाता है, उनका इतना कंट्रीब्यूशन था। कोविड का महामारी जैसे को हम लोग फेस करना, कंट्रोल कर पाना, बहुत ही योगदान उन्होंने दिया। डे नाइट 24/7 ड्यूटी किया। जितना डॉक्टर ड्यूटी किया दिन रात, इतना ये लोग ने भी काम किया। उन्होंने सर्विलेंस का काम करता है, प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज,
हर चीज़ का प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एक्शन प्लान, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, ट्रेनिंग एंड एडवोकेसी करना और डाटा फर्निश करना, डाटा अपलोड करना, जितना जो काम करना चाहिए इन लोग उस ढंग से और सही ढंग से किया। लेकिन दुख का बात यह है, इन लोगों का ग्रीवेंसेस को कभी डिपार्टमेंट ने जायजा नहीं लिया, सरकार ने अटेंशन लिया नहीं है। मुझे तो ये बताया गया है 2021 में कोविड के चलते एक कमिटी भी गठन हुआ सरकार लेवल में, शायद एआर डिपार्टमेंट का जरिए है, जिसमें कमिटी को चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन था कि उन लोगों को कि किस वे से ये जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, उन लोगों का सर्विस को रेगुलर किया जाए और एब्जॉर्ब कैसे किया जाए, उसका वेज एंड मीन्स के लिए कमिटी गठन किया है। लेकिन आज तक वो कमिटी का भी कोई रिजल्ट नहीं आया। दूसरा चीज़ ये है, जितने भी नॉन टेक्निकल स्टाफ इस वर्टिकल प्रोग्राम्स में अपॉइंटमेंट हुआ है वो बहुत हाईली एजुकेटेड है और अपना फील्ड में सब मास्टर है। कोई एमए किया है, कोई एमकॉम किया है, कोई मास कॉम करके जैसे जैसे जो ट्रेड में जिस जिस स्किल चाहिए उसमें उन लोग वेल इक्विप है। अब मान लीजिए हमारा कोई भाई बहन वहाँ काम कर रहे हो, लास्ट 21-22 ईयर्स में काम कर रहे हैं, उसका गवर्नमेंट स्टाफ होते हुए भी फ्यूचर का कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग है, कहीं 15-20 साल अगर कोई भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसका इंटरेस्ट, मिनिमम इंटरेस्ट को भी तो प्रोटेक्ट करना हम लोग सरकार का ड्यूटी भी बनता है। दूसरा चीज़ ये है, मैं मानता हूँ कि ये 683 नंबर से ये जो वर्टिकल प्रोग्राम है, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है 683 है, 683 को वन गो में, हमारा जैसे फिजिकल कंडीशन अरुणाचल में स्टेट का ठीक नहीं है, उसमें वन गो लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम फेज मैनर में तो लिया जा सकता है। कम से कम उन लोगों का लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए कुछ एक तो एवेन्यूज तो क्रिएट कर देना है, कोई एक तो पॉलिसी तो बना देना चाहिए। अपना ही बच्चा को और टाइम में, बहुत महामारी टाइम में हम लोग यूज़ कर देगा और अच्छा टाइम में भूल जाएगा, उन लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर, ये तो मेरा ख्याल से सर इनजस्टिस होगा स्पीकर साहब। तो दूसरा बात ये है, ये भी कर सकता है, अभी जैसे हमारा बहुत सा हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टोरेट बहुत है, डीएमई है, ट्रीम्स है, वहाँ अलग अलग बहुत 3-4 डायरेक्टर थे, वहाँ में जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उसमें भी तो इन लोगों को डिप्यूटेशन में या कोई एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में वहाँ में उन लोगों को यूज़ करके नया अपॉइंटमेंट, मैंने एडवर्टाइजमेंट अपॉइंटमेंट नहीं दे के इन लोगों को सर्विस को यहाँ भी एब्जॉर्ब कर सकता है, करेगा अगर सोचता है सरकार, तो रास्ता तो निकलेगा उन लोगों के लिए। तो दूसरा बात ये है कि कम से कम अगर इन लोगों को जो 600 से ज़्यादा आदमी है, इन लोगों का इफेक्ट तो नहीं सकता है, इन लोगों के लिए अगर कुछ सोचेंगे, बोले अगर सरकार अगर करना चाहेंगे तो इनको एक तो डाइंग खेदर भी क्रिएट करके उनको विद द प्रोविजन ऑफ को टर्मिनाइज विद द इनकम्बेंट, एक ऐसे पोस्ट वो कीजिए। ऐसे ढंग का सेम पैटर्न का मणिपुर में सर मेरा पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी है, उन लोग का गवर्नर का ऑर्डर भी है, यही जनवरी को 300-400 लोगों को एब्जॉर्ब किया गया है, सेम जो स्टाफ को, नॉन टेक्निकल स्टाफ को। अगर मणिपुर कर सक रहा है, असम का स्टेट लोग कर सक रहा है, इन लोगों को सर्विस को एब्जॉर्ब कर सक रहा है, अरुणाचल में क्यों नहीं करना चाहिए? तो फिजिकल अभी हम जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको अगर हिसाब करने से भी जो वर्टिकल प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंडिंग में मोर देन 50% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे ही रहा है, अनदर 50% में 20-22 करोड़ ही आता है। फेज मैनर में अगर करेगा इतना 20-22 करोड़ खर्चा करने का भी नहीं है, आप 50 को पहले लीजिए या 100 को पहले लीजिए, अगर ऐसे किया जाए तो रास्ता तो निकलता है। तो मेरा ये कहना है, हमारा जो जैसे अभी अरुणाचल में दूसरा डिपार्टमेंट में एजुकेशन में आप मान लीजिए एसएसए का जितना टीचर्स को फेस मैनर में रेगुलराइज कर रहा है, उन लोगों का सर्विस को रामसा में कर रहा है, बाकी दिए तो एक तो वो भी एक ऐसे वो है एग्जाम्पल है उसको भी मार्च कर रहा है। तो अगर बाकी जो डिपार्टमेंट का उसको स्टाफ को, नॉन टेक्निकल स्टाफ को, बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर को, वहाँ का दूसरा डिपार्टमेंट का को आप अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, रेगुलराइज कर रहा है, तो ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर में जो वर्टिकल प्रोग्राम्स में जो एसेंशियल सर्विस दे रहा है, दोज हु आर रेंडरिंग
ह्यूमन सर्विसेज इनको क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ये सवाल हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि वन टाइम सेटलमेंट का एक तो कम से कम वन टाइम रिलैक्सेशन करके कुछ ना कुछ एक आइडिया निकाल के, मैं जो आपको आइडिया अप्राइजल दे रहा हूं उस आइडिया से, जैसे आप गाइडलाइंस को, जो रूल्स को मणिपुर में जो जैसे कर रहा है उस रूल्स को मंगाइए, उस रूल्स को आप बात कर लीजिए उनका, उस हिसाब से इन लाइन विद मणिपुर गवर्नमेंट उसको अरुणाचल में भी जो जितना हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्टिकल प्रोग्राम्स का अंदर करने वाला को एब्जॉर्ब करना है बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरा बात, ये सरकार से भी इन्होंने उन लोगों का जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट का उन लोगों का अपना एक तो एसोसिएशन है, वो बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका है और घर घर हर एमएलए का घर कैंपेन करके भी, सिग्नेचर कैंपेन करके भी लेता है, बहुत सालों से कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है और आज तक उन लोगों का बात कभी भी सॉल्व करने के लिए कोई इच्छा नहीं रखा है। तो मैं जानता हूं हमारा अरुणाचल का हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोस्ट डायनेमिक है और यूथ है स्टेट का, तो उसका लीडरशिप में सही मायने तो हम लोग वी हैव अचीव ए न्यूअर हाइट ऑफ डेवलपमेंट। उनका लीडरशिप, उनका विजन काफ़ी अच्छा है और बड़ा भाई हमारा डीसीएम साहब ऐसा है और हमारा बड़ा भाई आलोलीबंग साहब जो हेल्थ को चला रहे हैं। आप लोगों को सोच विचार को तो मैं मालूम हूँ, लेकिन कभी कभी जो आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड हो जाता है, इसलिए आपका ध्यान आकर्षित इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि ये लोग भी, ये जो जितने काम कर रहे हैं 683 आदमी हमारा अरुणाचली है और इनका सर्विस हम लोग को कम से कम उन लोग ने जो कोविड के चलते इतना अच्छा काम किया है, ह्यूमन सर्विस रेंडर किया, उसको रिकग्निशन देना चाहिए। और फ्यूचर का उन लोगों का सिर्फ नहीं है, उनका बच्चा है, बीवी है, रिलेटिव है, उसका भविष्य को थोड़ा सिक्योर कर देना है बोल के मैं आप लोगों का सरकार को मैं स्पीकर सर आपका थ्रू से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलते चलते मैं एक लाइन कोट करता हूँ, बात अगर हो जाए तो ऊपर वाले से दुआ मांग लूँ, सबके दुखों में काम आऊँ, ऐसा कुछ हुनर मांग लूँ। इस चंद शब्दों का साथ मैं खत्म करूँ। थैंक यू। स्पीकर महोदय, जो हाइंग मांगपी साहब ने जो आज रेजोल्यूशन लाया है, शॉर्ट ड्यूरेशन में जो विषय लाया है, उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको एक बात का अवगत करा दूँ। उनको जो अवगत कराना है वो ये है, ये जो हमारा सदन है ये 60 मेंबर असेंबली है। 60 मेंबर असेंबली, आउट ऑफ 60 मेंबर असेंबली 40 लोगों ने ये जो बच्चे जो अभी रो दो के सड़कों पे जो घूम रहा है, जो ये विषय को लेके, हमारे जो यहाँ के जो जितने 40 मेंबर्स हैं वो हम लोगों ने सबने सिग्नेचर दिया है। इसको आप मंत्री साहब, आपसे हमारा दरख्वास्त है, इस विषय को आप हल्के से मत लीजिएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा ही सदन का 40 लोगों ने हमने इसको सिग्नेचर दिया है, उसमें से 3 लोग मंत्री लोग हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, आई अपोलोजाइज, स्पीकर साहब से मैं पहले अपोलोजाइज कर लेता हूं। हमारा स्पीकर साहब ने भी इसका सिग्नेचर दिया है। सिग्नेचर ऐसे ही नहीं दिया है, सिग्नेचर इसलिए दिया है क्योंकि ये मुद्दा जीनियन है, सही है। जो दुखड़ा हमारे जो बच्चे सुना रहे हैं वो सच है। 600 से ज्यादा लोग अभी सड़कों पे उतरने वाला है। आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी जितना उन लोगों का डाटास है, उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है,
वो सारा हाई मंकी साहब ने या सदन के सामने रख चुका है। वो शायद वो जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, हाई मंकी जी के पास है, वो शायद डिपार्टमेंट को भी पहुंच चुका है। इसलिए मैं हेल्थ मिनिस्टर से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बल्कि आज से कल से आप उस पर अध्ययन करना शुरू कर दीजिएगा। नहीं तो ये 600 लोग भूखे मरेंगे। ये 600 लोगों का जो दुखड़ा है वो हमको सुनना होगा। रिक्रूटमेंट किया है, तरीके से किया है। ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू नहीं हुआ। टर्म्स एंड कंडीशन के साथ प्रोसीड्यूरली इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। और यहां तक कि कुछ लोगों का तो 20-22 साल भी हो चुका है। अभी तक डिपार्टमेंट इस पे डिपार्टमेंट का ध्यान क्यों नहीं दिया इस पे? ये ऐसा भी नहीं है कि ये आज ही शुरू हुआ है। मैं तो 6-7 साल से इन लड़कों को, इन बच्चों को मैं घूमते हुए देख रहा हूं, घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल क्यों नहीं निकला है? अभी मणिपुर का, असम का आइंग मांगपी साहब ने ये सदन को बता चुका है, सदन के सामने रख चुका है। जब मणिपुर जैसा स्टेट जो हमारे स्टेट से भी छोटा है, वो अगर इस विषय पे काम कर सकता है तो हम अरुणाचल क्यों नहीं कर सकता है? लेकिन एक चीज मैं सदन के सामने एक कहना जरूरी समझूंगा, हमारे जो मंत्री लोग हैं, हमारे जो सरकार है, हमारा मनसा सही होना चाहिए। किसी विषय पर काम करने का मनसा होना चाहिए। जब मनसा नहीं होगा आप कुछ करेंगे नहीं। आप किसी के दुख को सुनने का, किसी के दुखड़े को हल करने का, इस पे वो आपका मनसा होना पड़ेगा। अभी कुछ एग्जाम्पल्स में अभी भाई माफी साहब ने भी बोला है, जिनका मनसा था, जिसका काम करने का इच्छा था, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ने एसएसए को रेगुलराइज कराया पेज वाइज से ही, लेकिन कराया, अभी भी करना बाकी है, लेकिन कुछ तो शुरुआत किया। अभी ऐसा नहीं कि हेल्थ मिनिस्टर सर, ऐसा नहीं है कि आपका ही डिपार्टमेंट में ये है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम आरती डिपार्टमेंट में भी है, बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट में भी है। लेकिन जो हमारे मंत्री लोग हैं, उन लोगों को, लोगों का जो दुख तकलीफ है उस पर ध्यान देने का बहुत जरूरी है। अभी मैं कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा छोटा काम है जरूर, लेकिन जब आदमी का मनसा होता है, करता है, कह के मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। Once upon a time, I was chairman of APIDFC. ऐसा हालत था, बेहाल था APIDFC का। मैं जब चेयरमैन बनके जब वहां गया, मैंने देखा बहुत सारा रिव्यू लिया, बहुत सारा मीटिंग्स लिया। लेने के बाद प्रॉब्लम को जब समझा, प्रॉब्लम ऐसा था कि इतना सारा अपॉइंटमेंट करके रखा है APIDFC में। उस समय 2006-07 का मैं बात कर रहा हूं। सैलरी देने को APIDFC के पास फंड नहीं है, इवन सैलरी तक देने को, ये हाल था। लेकिन अब अगर उस समय मैं ऐसे ही छोड़ देता तो आज APIDFC का क्या हाल होता? मैंने कोई उपाय नहीं सूझा, मुझसे कोई उपाय सूझा नहीं, तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को, अपना चीफ मिनिस्टर साहब को, दी देन चीफ मिनिस्टर गेगोंग अपांग साहब को रिक्वेस्ट करके मैंने कुछ फंड उनसे मांग के, मैंने जितने भी स्टाफ है उन लोगों को इनवाइट किया। इनवाइट करके उन लोगों को मैंने कहा कि जिनको BRS लेना है वो BRS ले ले, और जिनको BRS नहीं लेना है वो रहे। ऐसा करके जब इनविटेशन दिया है तो इतने सारे लोग BRS के लिए आ गया। मैंने BRS देके सबको वहां से ग्रेसफुली, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उन लोगों को BRS देके इज्जत से निकाला। उन लोग अपने वॉलंटियरली लिया। ऐसे कुछ ना कुछ तो
हमको आपको करना पड़ेगा ना। इस सदन में जितने लोग हैं, हम लोग किस काम के लिए हैं? हम लोग लोगों के लिए है ना, लोगों के भले के लिए है। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में है, आपको कुछ सोचना पड़ेगा, उन लोगों के लिए कुछ हल ढूंढना पड़ेगा। जब आप ढूंढोगे नहीं तो आप करोगे नहीं। कम से कम ढूंढना तो शुरू कीजिए, हल कहां से पाया जाए। और अभी हाल फिलहाल में मैं अभी भी मैं चेयरमैन लेबर बोर्ड हूं, लेबर बोर्ड का चेयरमैन हूं। अभी भी मैं जब लेबर बोर्ड में जब आया पिछले साल, मैं देखा कि जो हमारा जो डिपार्टमेंट का जो जितने भी स्टाफ है, बोर्ड का जितने भी स्टाफ है, ऑल आर कॉन्ट्रेक्चुअल, कोई रेगुलर स्टाफ नहीं है। और फिर देखा कि उन लोगों का जो सैलरी है वेरी वेरी मीगर, जिससे फैमिली ना आप चला नहीं सकोगे, ये हाल है। यूडीसी, एलडीसी, आरओ, पियोन, ड्राइवर, जो बाकी डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट्स का जो ये यूडीसी होता है, 30-40 हजार रुपया तनख्वाह मिलता है। मेरा बोर्ड का ओनली 16,000 to 18,000 ओनली यूडीसी का। आरओ का ओनली 22,000। आरओ एक ऑफिसर है, रजिस्टरिंग ऑफिसर। ये हाल है। लोगों ने, मैं जब चेयरमैन का चेयर लिया, मैं जब चेयरमैन बनने के साथ साथ ये दुकड़ा सुनाने लगा कि हमारा ये हाल है, हम फैमिली नहीं चला सकता। मैं ऐसे हाथ धरे बेटा नहीं रहा। मैंने सोचा ना, मुझे तो लेबर वेलफेयर तो काम तो करना ही है, साथ साथ मेरा जो स्टाफ है उसको भी, उसका जो दुकड़ा है उसको भी सुनना जरूरी है। इसलिए मैंने आते ही उन लोगों का सैलरी को एनहेंस कर दिया। टुडे माय स्टाफ्स आर ऑल हैप्पी, ऑल हैप्पी। लेकिन आपको तरीका ढूंढना होगा, आपको मनसा बनाना होगा, आपको इच्छा रखना होगा कि हम कुछ करना है। लेकिन आप जब तक सोचोगे नहीं, आप जब तक इच्छा आपका दिल में उभर के इच्छा जब तक नहीं आएगा, आप करोगे नहीं। आप इच्छा कीजिए, आप करोगे। आप करेंगे, करके नीचे कीजिए, आप करोगे जरूर। अभी ये जो 600 जो लड़के बच्चे जो घूम रहे हैं सड़कों पे, जो रो दो के हमारे घरों में घूम रहे हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, कोई बाहर से आए हुए बच्चे नहीं है। कुछ लोग तो, मैं तो ऐसे ही बच्चा बोल दिया, मैं तो बुजुर्ग हूं इसलिए बच्चा बोल दिया, अदरवाइज दे आर ऑल फैमिली होल्डर्स। सबके 2-4 बच्चे हैं। कुछ विषय जो सदन में यहां लाया जाता है, मैं सदन के जितने भी मेंबरान हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। जितने भी विषय यहां लाया जाता है, कुछ विषय ऐसा होता है जो सामान्य होता है, सामान्य होता है। लेकिन ये जो विषय अभी लाया है ये सामान्य नहीं है, इस पे हमको सोचना होगा। ये विषय जो है लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये जो विषय है ये लोगों के दिन भर के जद्दोजहद से जुड़ा हुआ है, लोगों के लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है। इससे इन लोगों की जिंदगियों से मजाक करना ये गलत होगा। सदन के जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स, आप लोगों से सबके, हमारे मंत्री जी को भी, खास करके मंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करता हूं, इस पे आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, आपको जरूर हल मिलेगा। आपको जरूरी होगा, जिस तरह से अभी हाई माफी जी ने कहा है कि ये जो किस तरह से मणिपुर वालों ने इसको, उन लोगों को एब्जॉर्बिशन किया है, किस तरह से असम वालों ने किया है, उस पर थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, वहां से कुछ ये हल निकलेगा। हमने तो ऑनरेबल स्पीकर सर, हमने तो ये देखा पिछले महामारी में हमने इन लोगों को काम करते देखा है। किसी टेक्निकल जो स्टाफ्स है, ऑनरेबल स्पीकर, उनसे कम काम नहीं किया। इन लोगों को हम कोविड पेशेंट्स के साथ देखा, कोविड बेंच के साथ देखा, इन लोगों को गांव-गांव में पैदल घूमते देखा। ऑनरेबल स्पीकर सर, हमने देखा है। वो डॉक्टर वो टेक्निकल है, वो अपना टेक्निकल काम जो कुछ भी उससे बनता है वो उन्होंने किया है, लेकिन इन लोगों ने भी उससे कम काम नहीं किया है। कभी कभी तो हमने यहां तक भी देखा है कि कुछ डॉक्टर्स वहां खड़े हैं,
जो टेक्निकल स्टाफ उन लोग खड़े हैं, ये जो नॉन टेक्निकल स्टाफ से जो वर्टिकल प्रोग्राम्स के, इन लोगों को ये उठाओ, वो उठाओ, ये एम्बुलेंस आया है उसमें ये सामान उठाओ, जितना दवा है जो है उन्हीं लोगों ने किया। और गांव-गांव में जाके जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसमें सारा प्रोग्रामिंग ये जो नॉन टेक्निकल जो स्टाफ से इन लोगों ने किया है। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं सरकार को और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन लोगों से मैं इस सदन में मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आंगमांगपी के जो शॉर्ट ड्यूरेशन जो ये है उसको साथ देते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस विषय पर थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा। ये जो लड़के बच्चे हैं वो कोई दूसरा नहीं है, ये वो हमारे ही बच्चे लोग हैं। उन लोगों का जिंदगियों के साथ हमको यहाँ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जामर कर। Hello. Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me a chance to participate in zero-hour discussion brought by my colleague, Honorable MLA Haing Mangpi ji. उन्होंने जो मुद्दा सर जो लेके आया है, जिन हेल्थ वर्कर्स के बारे में बात किया है, इवन आई हैव मेट देम एंड उनका जो विषय है बहुत ही जेन्युइन है। इसे ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ को मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसे कंसिडर करना चाहिए। एट द सेम टाइम इन विलेज लेवल देयर आर लॉट्स ऑफ आशा वर्कर्स जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी हेल्थ डिपार्टमेंट का ध्यान जाना चाहिए। मैं ऐसे करना चाहूँगा। इन एडिशन टू दैट, इस डिस्कशन को मैं भाग लेते हुए मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, ऑनरेबल मिनिस्टर से दो मुद्दा पे मैं और उनका रोशनी डालना चाहूँगा। स्पेशली इन डॉक्टर्स, जब स्टूडेंट क्लास 12 के बाद जब एग्ज़ाम देते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट जब वो देते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा एलोपैथी के लिए जाता है, एलोपैथी का डॉक्टर बनने के लिए, MBBS करने के लिए जाते हैं। रेस्ट आयुर्वेदिक के लिए, डेंटल के लिए, होम्योपैथिक के लिए, यूनानी के लिए अलग अलग टांस में चले जाते हैं। बट जब गवर्नमेंट जॉब में जब आते हैं, स्पेशली इन अरुणाचल, सारा का पे स्केल भी एक समान है और एट द सेम टाइम द रिक्वायरमेंट ऑफ एलोपैथी डॉक्टर्स आर मोर देन होम्योपैथी एंड आयुर्वेदी एंड अदर डॉक्टर्स। तो मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ, जब भी हमारा जॉब क्रिएशन हो आगे समय में, तो एलोपैथी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। होम्यो, आयुर्वेदिक और यूनानी बहुत से PHC, CHC में दे आर देयर, बट एट द सेम टाइम उनको हम ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि उनका ज़रूरी नहीं है, उनका भी ज़रूरी है, मगर एलोपैथी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एंड नंबर 2, जो NPA है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस जो डॉक्टर्स को मिलता है, अभी जो मिल रहा है एज पर 6 पे कमीशन के हिसाब से, ये टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देना सर ना, यू बिकमिंग टू वाइड, द डिस्कशन इज क्योंकि आई एम गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर मेंबर्स आल्सो, सो वी नीड टू ताकि बी प्रिसाइज आने वाले समय में और एक लॉ भी बनाना चाहिए जिससे कि जो प्रैक्टिस करे NPA लेने के बाद उनको पर कानूनी कार्रवाई हो। सर लास्टली सर, it is a very important thing कि every day we come across with many people who are operating in RK and streams like that. Doctors are giving them time like 1 महीने के बाद ऑपरेशन, 2 महीने के बाद ऑपरेशन, and at the same time in the same clinic some doctors are providing them with the operation facility within a 1 day or 2 day. तो इसको भी थोड़ा सा एड्रेस करना जरूरी है, बिकॉज नॉट लाइक एम्स इन दिल्ली कि लाख का तो हमारा ऑपरेशन दिन में होता नहीं है, महीने में होता नहीं है, मगर सच प्रैक्टिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन। सो थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा करेक्शन का जरूरी है। आई विल जस्ट लाइक टू ब्रॉड दिस टू नोटिस ऑफ हाउस एंड टू द ऑनरेबल मिनिस्टर। थैंक यू सर। दुर्जी वांगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो सवाल हमारा
मंत्री साहब ने जो रखा है उसको ये भी कुछ सबमिशन करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो भयाम मंत्री साहब ने जो ये शॉर्ट ड्यूरेशन सीरीज का जो रखा है, या तो जुकुम साहब हम दोनों को ये सपोर्ट करने के लिए कहा था, देखा तो पॉइंट जेन्युइन था, हम लोग सपोर्ट भी किया है। और इसके अलावा सर ये जो भी एम्बुलेंस जो 600 समथिंग जो आया था, हर एक एमएलए के पास में कैंपेन में घुमा है, तो हमारे पास भी आया, हम भी देखा। तो हमने पहले तो यही बताया था कि कोई प्रमोशन होने के लिए या कोई रेगुलराइजेशन होने के लिए कोई कैंपेन सिग्नेचर होता है क्या, तो हम ये बताया था। लेकिन बाद में तो विस्तार से हम कहानी को सुना है, देखा तो बहुत ही जेन्युइन है। इसमें हमने पर्टिकुलर एक एक आदमी को हमने टाइम लेके देखा है सर, इसमें देखा तो कोई 23 ईयर्स भी हो गया। तो इससे देख के हम लोग बहुत ही ख़राब लगा, क्योंकि जो इंटरव्यू जारी है सब कुछ फॉर्मेलिटीज करके जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल हिसाब से जो भी मेंटेन करके जो इंटरव्यू करके जो उनको लिया गया, कम से कम 20-25 साल जो हो गया आदमी का। तो जैसे हमारा सर्व शिक्षा अभियान टीचर लोग का जो प्रोविजन रखा है, एवरी ईयर मतलब 5% करके या 6% करके जो भी टीचर का रेगुलराइजेशन के डीपीसी बैठ के करता है, तो इसी तरह ये लोग को भी अगर कर दिया जाएगा तो कोई ख़राब नहीं है सर। क्योंकि इतना साल काम करने के बाद आदमी, खास करके आप देखिए सर, ये सबको पता है जितना ऑनरेबल मेंबर एमएलए या और कोई ऑनरेबल मिनिस्टर मैक्सिमम ने साइन किया, हमने देखा, तो हमने भी साइन किया और देखा सही में ये लोग कहानी जो सुन के हमें बहुत दुख लगा कि 2021 में जो कोविड महामारी हुआ था, सही में ये लोग ने बहुत काम किया। कहानी देखा, ये सब कुछ देख के सही में हम भी इसलिए सपोर्ट करते हैं सर। ये कम से कम इतना साल काम करने के बाद, इतना सर्विस हमारा अरुणाचल सरकार को देने के बाद में अगर इसको थोड़ा कुछ सहायता हम लोग नहीं करेंगे तो ये हम लोग तरफ से भी जस्टिफिकेशन नहीं लग रहा है। इसलिए ये भी एक हमारा भाई बहन है, वो भी हमारा अपना अरुणाचल का ही बच्चा है, तो ये लोग का सर थोड़ा सब साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं। और हमारे पार्टिकुलर हमारे हेड मिनिस्टर सर को हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेगा, और हमारा ये हमारा युवा चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के हमारे पेमानंद साहब और हमारे ये डिप्टी सीएम फाइनेंस का थोड़ा ये सब को गौर किया जाए। और ये खास करके हमारा हेल्थ मिनिस्टर को अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सीरियस लेकर थोड़ा उसको आगे बढ़ा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मैं भी इसको एक इंसानियत होने के नाते मैं भी इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। आशा है इसको सीरियस लेगा, तो मुझे ये आशा है। तो सबके पास धन्यवाद। थैंक यू सर। श्री कैंतोरिना सर, इसमें श्री कैंतोरिना मैं भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। कैंतोरिना। Thank you, sir. I am Kentorina, representing Teknariku Assembly Constituency of Lower District. Sir, through you, I offer my warm thanks to Ayang Mangpiji for raising in his short duration discussion regarding the non-regulation of non-technical staff. Honorable Member Dokum Sir has stated that this is not only for medical department, but there are other departments also like that. So, aside of this subject, I am having 72 numbers of such staff in the Department of Directorate of Accounts, Treasuries. Honorable Member, we are discussing on certain topic. If you concentrate on that topic, it will be more beneficial. If you have some other issues, you take it up some other time. Please, That will be, there will be no end to it. You know, every member will stand up and start talking about some other department. On this subject. So, are you supporting the short duration raise? Yeah. Yes, sir. And here is a quotation. Governor of Arunachal Pradesh is of the opinion that it is necessary or expedient so to do. He may by order for the regions to be recorded in written relax
and provisions of these rules with respect to any class or category of person. Moreover, as per Cabinet's decision on 10th August 2018, was pleased to approval for department, sir. 72 posts. Since 72 numbers of contextual contingency data entry operator and 15 numbers contingency driver are already existing. सर ऐसा कैबिनेट भी पास किया है, उसको आज तक सर नहीं किया। इनका भी मैं सपोर्ट करता हूँ, इन लोग को भी साथ में सर सपोर्ट करें, इन लोग को भी दे दे। डॉक्यूमेंट साहब जैसे बोल रहे हैं, सब डिपार्टमेंट है, फेज वाइज इन लोग को भी दे दे, फेज वाइज सर, ऑन सीनियरिटी बेसिस फेज वाइज ईयरली सर देते जाइए तो होगा। मैं इनको सपोर्ट करता हूँ और इसको भी मैं देने के लिए मैं साथ में आपको अनुरोध करता हूँ। थैंक यू। प्लीज वो आप लोग जो भी है सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कीजिए, जहाँ तहाँ वो इधर उधर का बात मत कीजिए। जो हाइंग एमपी साहब ने शॉर्ट ब्रिज में जो लाया है उन्हें मैं समर्थन करते हुए आपका मीडियम से मैं भी 2-3 शब्द रखने का कोशिश करूंगा। सर, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे जितना भी टेक्निकल ऑफिसर हो, वो सजेशन देता है और उस सजेशन को लेकर जो मकान को जो बनाता है, घर जो बनाता है, वो एक कारपेंटर जो है बनाता है और एक राजमिस्त्री जो है वो बनाने का कोशिश करता है। लेकिन इंजीनियर खुद खड़ा होकर जामपुल नहीं मारता है, कूर नहीं मारता है, बेलसा नहीं मारता है। लेकिन एक साथ में जो लेबर है और साथ में जो उनका जो जिसको मिस्त्री कहा जाता है, इन्होंने काम करता है। इसी तरह की यहाँ जो हाइंग एमपी साहब ने आज जो ले आया है उन्हें मैं समर्थन करते हुए अरुणाचल में बहुत से डिपार्टमेंट में ऐसा है, लोग हैं कम से कम 20 साल 25 साल से काम कर रहा है, उनका कोई आगे कोई सपना नहीं है कि वो फ्यूचर में उनका जो बुढ़ापा में उसको कुछ मिलेगा, उनका दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इस बात को हम भी इस जो लड़का लोग जो है कम से कम जो अभी जो स्पीकर लोग ने कहा है, हम लोग 40-50 एमएलए साइन किया और देख के हम लोग साइन किया कि ये सचमुच जरूरी है। और जो मेडिकल डिपार्टमेंट का जो लड़का लोग का जो बात जो आता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हम लोग का बीच में एक कोरोना महामारी आया तो उसमें बढ़ चढ़ के उन लोग भी पार्टिसिपेट करता है और सिर्फ उसी में उन लोग नहीं रहता है, उन लोग हर गांव में जाता है, हर मतलब मेडिकल की डिपार्टमेंट की ओर से, भारत सरकार की ओर से, स्टेट सरकार की ओर से क्या योजना बनाता है उसको हर गांव में पहुंचाने का, हर मेंबर तक, हर घर तक पहुंचाने का उन लोग कोशिश करता है। लेकिन उसी बीच में सेम टाइम जो इंटरव्यू लिया, जो सिस्टर लोग का है, जो टेक्निकल पार्ट जो है, उन लोग का पार्ट वाइज उन लोग का रेगुलाइज होते जा रहा है, उन लोग का बेचारा लोग का नहीं, आज तक दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। और ये देखते हुए लास्ट 2021 में एक कमेटी बनाया चीफ सेक्रेटरी का, उस जो नतीजा आज तक क्यों नहीं आया और क्या प्रॉब्लम है, इसको भी कम से कम डिप्टी स्पीकर सर आपका मीडियम से हम ये जानना चाहता है, वो कमेटी का पे रिव्यू मीटिंग हुआ ना नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, वो मीटिंग होने के लिए कौन से क्या बाधा आया, कौन से तकलीफ आया, वो जानकारी भी देने से ठीक है। और नहीं तो बाकी जैसे कि डिपार्टमेंट में जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हर साल 200-300 करके एसएस टीचर को रेगुलाइज कर रहा है, इसी को भी सरकार का पास हाँ धनराशि नहीं होगा
धन राशि का बहुत कमियां होगा। हम लोग ये नहीं कह रहा है कि आपका 680 को एक साल में कर दो, 2 साल में कर दो, उसको ऐसा नहीं करते हुए उसको पेज मैनर हर साल में 150 या 200 करके अगर इसको भी अगर किया जाता है तो सबका उन जो 680 जो आज गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उनका जो बेटा बेटी है, उनका बीवी बच्चा जो है, एक आराम पढ़ने लिखने में उनका जो बेटा बेटी का सुविधा मिलेगा। और वो भी अरुणाचली है, अपना ही भाई है और अपना ही लोग है, उन्हें सरकार उनको कम से कम इतना साल जॉब करने का बाद उसको एक जिंदगी आराम से जीने का एक राहत दिखाने से अच्छा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और इस उम्मीद का साथ मेरा बात यहाँ रखता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट तलिम तबोजी, ऑनरेबल एमएलए। Thank you, Honorable Deputy Speaker, for giving me chance to participate in this short duration discussion moved by Ayang Mangpiji. To begin with, let me quote one English proverb, and I quote, "If there is a will, there is a way." Unquote. Sir, it has been learned that all the staffs are employed in the vertical programs of central government. They have been working without equalization and without promotion. And if we were in their position, we also do as they do. They have children, they have families, and they have many dependents. If one day their vertical programs cease to exist, where will they go? So we must think for them. Our government is welfare government, people-friendly government. We should also think for the welfare of our employees, what the other states do. So I also support this motion moved by Hayang Mangpiji. I think our Honorable Health Minister cannot do alone. This can be done by the three persons. One is our Honorable Chief Minister, one is our Deputy Chief Minister, who is very honest and measured and seasoned, one of the political leader of Arunachal Pradesh, and our Honorable concerned Health Minister is very cool gentleman, work more, talk less. So I think those who are working in the vertical programs of central government, they can be regularized on phased manner. If they are not regularized, then how their future will be? There will be no security in the future. And we see the employees are get promoted because working in the same place, working in the same capacity, they feel monotony. So there is a system of promotion even in the regular service. So same in the case, in this also, when a employee is working in the same capacity without regulation, I think they feel monotony. So I
through you, Honorable Deputy Speaker, I request the government to look into the matter very seriously. Even I am ready to keep half of my MLA late if the government is not available, if the government position is not well. But I think this is the government, popular government and people-oriented government and people welfare government. So we should think for the employees. Thank you. Thank you. Next, Laisam Simai, Honorable MLA. Sir, Laisam Simai. There is name. Already listed name, yeah. Thank you, Deputy Speaker, sir. You will be given chance. I also raise here, take part in the short our discussion brought by Honorable MLA Mang Fiji. Sir, we have heard from the various speakers who have shared elaborately in this discussion. Well, I also would like to bring to the notice of the House that these employees are our own dear brothers and sisters. They have been working in the department for the last more than 20 years. Some of them are 10 plus years. And they are working under the various vertical programs. It is more or less like a directorate. In the 15 vertical programs of the Government of India and the state government programs, all the programs are headed by a regular project directors or the state nodal officers, which are the regular medical officers. They are called as a state nodal officer in the vertical programs. And all the staffs under the department, the programs are contractual, right from the post of deputy director to the data entry operator. There are many officers who are rendering their service dedicatedly, honestly, sincerely for the past many years. If these people are not working sincerely in the department, I'm sure the department, the progress or the performance of the department will not be able to reflect. These are the people who implements all these states and central programs, implementation of the programs in the various parts of the state. And also their contribution towards state, towards the health department is incomparable. Despite of the fact that they have no job security, they are not given all the provisions and the benefits which the regular employees get, like casual leave, child care leave, or the bank loans, or the GPF, even up to the point that they are not allowed to appear the departmental exam for the regularization of their job. So those are the deprivation they feel. And it is a very genuine, which I also feel that we should, as a welfare government, should look into the matter. Moreover, like every employee, they have also dependent members, and most of the family are the single bread earner. If anything happens to them, their family will be in a total collapse. So those are the areas which government needs to look into it. I'm sure under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister and also our senior most and very experienced our Deputy Chief Minister and also our beloved Health Minister, I'm sure that their grievances will be looked into. Sir, as many of our friends have already said, the recruitment process of these employees are of the same as for the doctors
and the nurses. Under all the vertical programs, proper advertisement were made and all the codal formalities were observed. But the sad part is that the same doctors and the nurses are absorbed or regularized in a phased manner, but these non-technical staffs, though they have recruited in the same formalities, are deprived of their regularization. I know there are some problems and the situations, financial crunches of the state government that everybody is well aware of. But still, since they contribute their whole life to the department, it is our part and it is the duty and responsibility of the government to look into their grievances. It is also learned that a committee has been already constituted in the previous session. I'm sure we can revisit that committee, revive that committee so that we can ask the latest report from that committee and so that government can go ahead with that. With these few words, I would like to thank you, sir, for giving me the time. Thank you. Next, Kento Jiniji, Honorable MLA. Honorable Deputy Speaker, sir. Sir. With the permission from you, I would like to participate. Sir. There is list already listed, na? So your chance will be given. Okay. Please. Next is Kento Jiniji, Honorable MLA. After that, your turn. Thank you, Many Speaker, more. sir. While participating short duration discussion moved by honorable members Hayang Mangpiji, I would also throw some lights why they should be regularized where they have been appointed. It appears all technical staffs were also appointed by following due procedure of law with like that of nurses and doctors. More so, these employees have also put many years and most of them appears to have completed SBAR, and at this stage, it is too early to retire and too late to get a new job. Under such situation, there is no alternative than to absorb and regularize them in the service where they have been appointed. Because all employees are having a family members, there are a lot of dependents, having kids, children, wives, and other relatives. At this stage, if they have been discontinued and ousted from the service, the crux of the issue is they are nowhere and they will be loitering in the street. At this stage, therefore, in my considerate view, the equal opportunities should be given to these employees by regularizing them in a phased manner. More so, the Constitution of India under Article 16 provides equal opportunities of job. They are also a genuine Indian citizen. Our own brothers and sisters deserve equal treatment with like that of others. With that, I support the short duration discussion moved by Mr. Hayang Mangpi, the honorable members, and I personally feel that government should also have a will to absorb them in phased manner
so that their welfare measure can be taken. Thank you for giving opportunities. Okay. Next, Honorable MLA, Tanik PG. Thank you, sir, giving me this opportunity to participate in this 0 hours discussion, short duration discussion. I'm supporting the short duration discussion raised by Honorable MLA Sri Haing Mangpi in connection with regularization of non-technical staff under मेडिकल डिपार्टमेंट। यहाँ सबने पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या बेस में है। हमारा जो सोच है और एज पर रूल, रिक्रूटमेंट रूल में तो आपका जो भी अपॉइंटमेंट होता है उसका 5 इयर्स होने से वाजिब परमानेंट हो जाता है, देन 10 इयर्स होने से आपका परमानेंट हो जाता है, देन ऑल्सो उनका प्रमोशन भी चला जाता है और 33 इयर्स के बाद रिटायरमेंट होता है। अभी तो बढ़ा दिया है थोड़ा 60 एज में, लेकिन एज पर रूल में तो 33 इयर्स है। ड्यूरिंग दिस ये जो आप देखा है तो आपका 680 जो आदमी है आपने रिक्रूटमेंट लिया, दे हैव ऑलरेडी सर्व मोर देन 30 इयर्स 10 इयर्स ऐसा करके ये है। तो अभी इनका लाइफ ऑलरेडी जो अपॉइंटमेंट का अपॉर्चुनिटी उनका जो एज होता है एज बार तो चला गया, दे कैन नॉट बी इंगेज इन अदर डिपार्टमेंट में अभी रिक्रूटमेंट होगा ही नहीं। दे हैव गॉट फैमिलीज, आफ्टर ऑल दे आर आवर ओन पीपल। यहाँ कई हैं एम्प्लॉय किया, बहुत अच्छा है, डिपार्टमेंट को हम थैंक्स देता है कि दे हैव बीन एम्प्लॉयड, लेकिन पार्शियली एम्प्लॉयड था तो उनको रेगुलराइजेशन करना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है और नीड बेस्ड प्रोग्राम में, बट जो हमने इनको सर्विस में लाया है 20 इयर्स, जिसको हमने इंटरव्यू प्लेस में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, लेकिन दे आर एक्टिंग डेट ऑल्सो, ऑफिस चला रहा है, ये आदमी लोगों को अभी हम रेगुलाइज नहीं करके कैसा करेंगे? दे आर ड्यू, ये जो आपका रिटायरमेंट ड्यू आ रहा है, क्या बेस में हम करेंगे अनटिल अनली यू रेगुलाइज देयर सर्विसेज। तो इसलिए मैं यही गवर्नमेंट को, क्योंकि दिस इज पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है और हम देखा है तो दूसरा स्टेट में आसाम में मणिपुर में तो अगर उनको रेगुलाइज होता है बेस ऑन डेट, उनका जो केस बेस में किया है वो हम लोग उसका बेस को लेकर ये जो है पेज मैनर में, हम ये नहीं बोल रहे थे टाइम देने के लिए, पेज मैनर में जैसा आपका ये सर्व शिक्षा अभियान टीचर लोगों को तो हम लोग पेज मैनर में दे रहे हैं हमारा गवर्नमेंट। सिमिलरली दिस नॉन टेक्निकल स्टाफ, जो टेक्निकल स्टाफ को तो ऑलरेडी तो चल ही रहा है, उनको पेज मैनर में डाल रहा है, लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ दे आर स्टेगनेंट टिल 20 इयर्स तक, अभी उनका बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा निकलना अपना आदमी भी, इसलिए इसको जो है पेज मैनर में करने से अच्छा है। आई एम सपोर्टिंग दिस। और ये जो आपका जो क्वेश्चन है हम तहे दिल से हम भी सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट इसको जरूर देखने से अच्छा है। विट इज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट Honorable MLA Tan Pho Ang Ji. Honorable Deputy Speaker, sir, I also rise here to support the short duration discussion moved by honorable members, Mr. Hai Mangfiji. Considering the service rendered by the non-technical staff of NHM employees in the various parts of Arunachal Pradesh during the COVID-19 here in Arunachal Pradesh. You see, there are some mechanism that the government has to be find out to solve the genuine demand of the employees. It is my submission, considering the demands of the contractual employees of the NHM in the entire part of Arunachal Pradesh. It is my submission to the government of Arunachal Pradesh as well as to the Department of Health Service that you have to find out the mechanisms, if possibilities, to be make it regularized
in one phase. If not, then the phase-wise. That are to be initiated by the government. Because we one of the speakers have already spoken out that all these problems are faced by the entire employees. More than 600 employees are facing a lot of problems. Considering the demands and the genuineness, I also support the short duration discussion for regulation of the contractual employees for regularization of their service. So it is better that the government should make it the state-wise employees regularized in the initial state and the district-wise and the block-wise. This is my submission, and I conclude my submissions in support of the short discussion duration moved by the Honorable MLA. Thank you. No one to take part? अच्छा Okay. Honorable MLA Lokam Tasuri. स्पीकर सर, बात तो एक ही है, सभी तो एक ही भाषा में कहा, सब यूनानिमसली समर्थन किया कि ये 0 आवर डिस्कशन जो रेगुलराइजेशन ऑफ नॉन रेगुलराइज जो स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, ये खास करके मेडिकल डिपार्टमेंट का है। मेरा तरफ से ये सुझाव है कि मेडिकल डिपार्टमेंट जो भी बोलो, चाहे जितना जो 4 ग्रेड स्टाफ दारू पी के इंजेक्शन मारो, लेकिन सर्विस दो देता है। सर्विस टू मेडिकल तरफ से इनका सर्विस जो है, नॉट एनी अदर सर्विस, ए सर्विस ऑफ लाइफ सेविंग, द ह्यूमन लाइफ सेविंग, नॉट एनिमल लाइफ सेविंग, particularly human life saving के लिए है। तो human life saving, this is, we are also human being। हम जब कि बीमार होता है तो या मेडिकल जाओ या भगवान को प्रार्थना करो, ठीक कर दे। तो this is a serious important matter, and it is a to be determined how to resolve the problem in amicable way। तो मेरा कहना है कि यहाँ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम ये सिर्फ नहीं है, हर डिपार्टमेंट में भी है, एजुकेशन में भी है, कहाँ में है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अपॉइंट करता है। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अपॉइंट करता है बोल के, उसमें इन लोग ये टर्म एंड कंडीशन लगा देता है कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट इज ए टेम्परेरीली ऑन टेम्परेरी बेसिस बोलता है। तो जो टेम्परेरी बेसिस है, तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखना है, तो आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम टेम्परेरी है क्या? फ्लैगशिप प्रोग्राम तो जैसा आपका जो 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 मेडिकल में है, ये तो एंडलेस है, तो ये सर्विस तो होते जाएगा। एजुकेशन में लाइक ऐसे टीचर है, वो भी तो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, टेम्परेरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अपॉइंट किया गया। उसको इतना साल लाइक 2002 से लेके इतना ईयर्स को रिक्वायर किया गया। उसी में भी तो हम लोग टीचर को भी हम ये सजेशन दिया था, आप लोग मेमोरेंडम लिखो, गवर्नमेंट भी मिनिस्ट्री को लिखो कि इतना साल मिनिस्ट्री क्या बोलता है, क्योंकि मिनिस्ट्री हर फ्लैगशिप प्रोग्राम को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अपॉइंट करते जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको रेगुलराइज करते जाएगा। तो स्टेट एक्सचेकर का भी एक बर्डन है। स्टेट गवर्नमेंट बोलने से हम खुद ही गवर्नमेंट है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए उसको हम ये इशू को लेके हम ये अगस्त हाउस में हम ये बात रखना चाहता है कि हमें नॉट ओनली मेडिकल
इन बिरियास जहाँ में फ्लेक्सिब प्रोग्राम है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जहाँ में अपॉइंटमेंट है, टेम्पररी बेसिस अपॉइंटमेंट किया गया, उसका बारे में एक कैबिनेट बैठक हो और वहाँ में एक डिसीजन बना के गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री को अप्रोच करना पड़ेगा कि आपका फ्लेक्सिब प्रोग्राम का एंडिंग का डेट कोई फिक्स नहीं है। एंडिंग डेट फिक्स होने से तो ठीक है, जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अपॉइंट करो 10 साल 5 साल, इसका बाद में नौकरी कोई क्लेम नहीं होगा, ये होने से तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है। अभी लाइक ऐसे टीचर तो अभी 2000 कितना 4 ना 2 से शुरू हुआ था, अभी 2022 है, तो इसी टाइप का जो एंडलेस नहीं है, जो एंडिंग नहीं है, एंडिंग डेट फिक्स डेट नहीं है, तो मिनिस्ट्री भी तो सोचना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री को हम देखा है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट ये फ्लेक्सिब प्रोग्राम सिर्फ नहीं है, जितना जो फ्लेक्सिब प्रोग्राम गाइडलाइन आता है, जैसा गाइडलाइन है उसको हम लोग मानते जा रहे हैं। और हम जरूर मानना तो जरूर है एज बीइंग पार्ट ऑफ द अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द इंडियन टेरिटरी, वो मानना जरूर है, लेकिन टेरिटरी बोलने से आवर ज्योग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। वहाँ का ज्योग्राफी, कुदरत जो है, प्रकृति है, वो अरुणाचल से तो अलग है। लाइक आपका अदर लाइक आरडब्ल्यूडी में पीएमजी एसओआई रोड का कंस्ट्रक्शन का बोलो, लाइक अभी आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का बात बोलो, ये बिल्कुल अलग है। तो उसको हमें जो भी फ्लेक्सिब प्रोग्राम को जो चीज़ स्वीटेड नहीं है, मिनिस्ट्री को मूल्य यहाँ से अपना जो प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू मैच विद दैट गाइडलाइन, या हाउ दैट गाइडलाइन शुड रिलैक्स सो दैट इम्प्लीमेंटेशन इज पॉसिबल इन द स्टेट, ये कदम उठाना भी जरूरी है। तो इसके विषय में ये रेगुलराइजेशन ऑफ नॉन टेक्निकल स्टाफ, इसको हमारे तरफ से ये व्यू है, ये इतना साल लाइक अभी मैंने स्पीकर बोला है, लाइक कोविड में तो हम देखा कि एवरीवन अटेंटिव है, इन ए वार फुटिंग मैनर में सब तो ड्यूटी निभाया, और इनका मांग को हमारे पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पास पैसा नहीं है, अभी नहीं कर सकेगा, ये बोलना भी तो बोलने के लिए भी तो सही नहीं है, लेकिन डिमांड जो है जिन्होंने कि यहाँ में हम डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को ये कहना चाहता हूँ कि उसको आप ये बना दो, बना के वो कौन सा ईयर का ईयर वाइज बना के सीनियरिटी लिस्ट बना के ग्रुप बना के 2-3 ब्रांच बना के 5 ब्रांच को हमारा प्लानिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्लेस करके देख देने से ठीक है, उसको रेगुलराइज के लिए, क्योंकि आपका टेक्निकल स्टाफ रेगुलराइज होता है, नॉन टेक्निकल को नहीं करेगा, बोलना भी तो गलत है। टेक्निकल डॉक्टर अकेले हॉस्पिटल में मेडिकल नहीं चला सकेगा विदाउट अदर नॉन टेक्निकल स्टाफ। डॉक्टर कहीं पे भी नहीं जा सकेगा विदाउट ड्राइवर, गाड़ी में कैसे उठेगा, तो ड्राइवर काम से अंदर नॉन टेक्निकल स्टाफ। तो इक्वली एक पार्ट है, उसको मेरा ऐसे में ये है कि उसको पार्ट वाइज बना के आपका 600 तो थोड़ा ज़्यादा है, साल में 200 ऐसा कुछ ये पैटर्न ये बना के स्ट्रेटेजी बनाने से ये को सिस्टम को बना देने से ठीक है डिपार्टमेंट। इसका बाद में डिपार्टमेंट ये भी इनिशिएटिव लीजिए कि ग्रीवेंसेस मिनिस्ट्री को भी प्लेस करना है। आपका कहने पे हम लोग 600 उन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लगाया, दे आर ग्रीवेंसेस डेट कि इतना साल और सर्विस किया है, हाउ दे विल बी डिस्प्लेस्ड, देयर एज हैज गॉन टू अप्लाई जॉब इन अदर डिपार्टमेंट। तो बड़ा चीज ये है कि इन लोग इतना साल यहाँ किया, अभी फिर यहाँ से इसको टर्मिनेट करेगा, फिर दूसरा डिपार्टमेंट में और नौकरी नहीं मिल रहा है, इसका एज तो ओवर हो रहा है ये अप्लाई करने के लिए। तो इनका लाइफ एवरीथिंग हैबिट वे ऑफ डूइंग एक्टिविटीज
जो हैबिट है यहाँ में कॉन्सेंट्रेट है, तो इसीलिए उसको कंसीडर करना तो जरूरी है और उसको पेज वाइज मैनर में कीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री को भी लिखिए, आपका तरफ से भी कुछ फंड दे दो, 50% हो दे दो, 50% स्टेट गवर्नमेंट अगर देता है तो 600 आदमी को एक साथ कर दो। तो दिस इज माय सबमिशन। थैंक यू। अर्जुन जी, यस, ऑनरेबल एमएलए अर्जुन। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस थोड़ा समय देने के लिए, इस शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन में पार्टिसिपेट करने देने के लिए। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा चुटकुले के साथ में इसको शुरू करना चाहता हूँ। दो दोस्त था, एक चींटी और एक मधुमक्खी। एक शाम को चींटी ने आके दोस्त से कहा, दोस्त आज मेरा घर बनाना ख़त्म हो गया तो हमको थोड़ा दारू चाहिए, थोड़ा दारू पिला दीजिए। तो मधुमक्खी ने उनको आके दारू दिया। काया पिया ट्राइबल सोसाइटी में एक होता है, काया पिया घर बनाना ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट दिन फिर खेती फिर मधुमक्खी से बोलते कि दोस्त आज फिर मेरा घर, खेती ख़त्म हो गया, खेती ख़त्म हो के आज धान काट के लाया, फिर थोड़ा सा पार्टी करना है, तो फिर आपका मदद चाहिए फिर से। फिर उन्होंने फिर अपना वही थोड़ा अपोंग दिया, फिर चींटी काया पिया, मस्ती किया। इसी तरह बार बार चींटी जो है मधुमक्खी से विनती करता है, मदद मांगता है। वो चींटी जो मधुमक्खी जो उनको मदद करते जाता है, लेकिन चींटी का तरफ से कुछ भी उनको मदद नहीं मिल। तो एक बार मधुमक्खी क्या हो गया कि थोड़ा नाराज होके अभी से उनको मदद नहीं करेगा। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में कितना बार एक दोस्त है, एक वो है बोल के, पड़ोसी है बोल के उनको मदद करते रहेगा। तो ये सोच के मधुमक्खी ने उनको मदद करना छोड़ दिया। तो अभी ये नॉन टेक्निकल स्टाफ्स का कहानी भी इस प्रकार है कि हर प्रोग्राम्स में हम उनको मदद करता है, उनसे मदद मांगता है, उनसे मदद लेता है, लेकिन हम उनको रेगुलराइज करने में ये सक्षम नहीं है। तो उसमें क्या है, अंग्रेजी में भी, और ये ऐसे नहीं कि पहली बार इन्होंने आया मदद का गुहार लगाया और हम सब ने नहीं किया, ऐसे नहीं। ये बार बार ये पोस्ट टू पिलर घूम रहा है, सब जगह घूमता है, सबसे गुहार लगाता है। उनका सर्विस लेंथ भी आपका कम से कम कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस में 15 से 20 साल मैक्सिमम लोग का है। तो ऐसे करके सबसे घूम के ये गुहार लगा के आज यहाँ पहुँचा है। और सर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी मालूम है इंग्लिश में एक कहावत भी है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। तो हमको उनका जस्टिस के लिए भी सोचना पड़ेगा। उनका भी घर परिवार है, वो भी बीबी बच्चा वाला है। और मोरोवर मैं किसी को यहाँ खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में जो लोग है वो रेगुलर सर्विस वाले से ज़्यादा काम करता है। हालांकि उसको प्रिविलेज एंड आपका बेनिफिट्स नहीं मिलते, फिर भी ये रेगुलर सर्विस वाला से ज़्यादा काम करता है, भागदौड़ करता है। ये 24/7 रेडी रहता है। जिसको प्रिविलेज और बेनिफिट्स मिलता है वो आराम से सो के रहता है। तो मेरा ये मानना है कि जो एक्टिव है, जो सोसाइटी को शार्प करने के लिए 24/7 रेडी है, अपना तन मन देने को तैयार है, वहाँ उनको क्यों ना हम इस छोटा सा मदद ले, सो दैट कि और उनको एनकरेज करें। क्योंकि एनकरेजमेंट से ही आदमी वो करता है और आगे बढ़ता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं भी इस हायंग मंगपी साहब का इस मोशन को सपोर्ट करता हूं और अपना सरकार से यही निवेदन करता है कि
एक ही बार में सबको नहीं करते हुए थोड़ा इस साल या अगला साल 100 या फिर 200 ऐसे ऐसे करके आस्ते आस्ते ये सबको रेगुलर कर दिया जाए, यही कहना है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात भूल गया हम, यहाँ में ऐसा करने से ठीक है क्या? मिनिस्टर हेल्थ साहब है यहाँ में 600 है, 600 का आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री अगर जो अभी दरमा दे रहा है वो आते रहो, फिर अगर वो आते रहेगा, फिर अगर इसको रेगुलर करता है तो कुछ उसका ऊपर में प्लस करना, स्टेट गवर्नमेंट करना, अगर ये सिस्टम बना दो तब 600 को एक साथ कर सकता है। क्योंकि इसका जो मिनिस्ट्री से जो पैसा फ्लेक्सिब प्रोग्राम आते रहेगा उसका ऊपर में स्टेट से प्लस कर देके रेगुलर होने से थोड़ा दरमा थोड़ा बढ़ेगा होगा। आपका तो माइक ऑन करो, माइक बराया वाला को स्टेट गवर्नमेंट देगा, मिनिस्ट्री जो फ्लेक्सिब प्रोग्राम का जैसा जो पैसा दे रहा है वो ये सिस्टम ये मैकेनिज्म ऐसा बुद्धि चालू बनाना पड़ेगा हेल्थ डिपार्टमेंट, ऐसा करके करा दो। Honorable Minister. Thank you, Honorable Speaker, sir. हयांग मंकी जी का जो नॉन टेक्निकल स्टाफ जो वेरियस पार्टिकल डिपार्टमेंट में जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनको रेगुलराइजेशन के लिए जो अभी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में जो लाया गया है, रियली मैं बहुत बहुत धन्यवाद हयांग मंकी जी को। और उसका सपोर्ट में भी 13 स्पीकर ने साथ दिया है, सिर्फ ये न्यातो दुकाम यामर करबाग द्रजुआंगसु केंटोरिना तेसिकासो तालेमताबो लाइसाम सिमाई केंटोजिनी तारिंदाकप तानपोवांगहम लोकम तसर एंड ओजिंग तसिंग। तो इन 13 पार्टिसिपेंट है, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा डिपार्टमेंट का जो नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए इतना चिंता है, और जो यहाँ में सदन में है जो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया है वो भी तो डील में चाहता है, ये मदद करना चाहिए। रियली ये हमारा डिपार्टमेंट में वी हैव इन माय डिपार्टमेंट इन हेल्थ डिपार्टमेंट देयर आर 5 डायरेक्टर्स, 1 डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टर ट्रिम्स, आयुष, ऐसा करके 5 डिपार्टमेंट हैं, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन। तो इसी 5 डिफरेंट ये डिपार्टमेंट में हम 683 अभी जो कॉन्टेक्चुअल है नॉन टेक्निकल स्टाफ है। रियली ये इन 10-15 टू इवन 23 इयर्स तक इन सर्व कर रहे हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट को हेल्थ सब्जेक्ट में। और उनका प्राइम टाइम प्राइम लाइट रियली इसी में खो चुका है। वो अभी कहीं भी उनका काबिल होने से भी वो कहीं भी इंटरव्यू में नहीं जा पाएगा, कहीं भी न्यू ये नहीं होगा, तो वो तो यहाँ में ही रहना पड़ता है, तो रह रहा है। तो उनका यहाँ इंटरेंस में भी इंटरव्यू भी रियली टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इक्वली दे आर परफॉर्मिंग, दे आर पासिंग द इंटरव्यू। इन लोग रिटर्न भी देता है, विवा भी देता है, सब इक्वली है, सेम ये में इन लोग को इंटरव्यू भी ले रहा है। तो उसका बाद ये जो नॉन टेक्निकल है जो हयांग मांगपी ने भी मेंशन किया है, रियली इन लोग का हाईली क्वालिफाइड पर्सन इसमें है, हाईली क्वालिफाइड मेंबर्स यहाँ में है। और इन लोग का प्रोग्राम जो भी है इक्वली दे आर परफॉर्मिंग देयर वर्क्स, देयर ड्यूटीज। इन लोग जैसा टेक्निकल कर रहे हैं उसी से भी कहीं कहीं में ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऑर्डनरी जो मेंबर्स ने भी मेंशन किया है, इवन कोविड पेंडेमिक में भी इन लोग दिन रात रियली इन लोग का ये होके काम करके ही हम लोग नाम भी कमाए है और काम भी किया है, और इन लोग सर्विस भी दिया स्टेट को। तो अभी अदर्स ये में भी इन लोग डिफरेंस नहीं दिखाता है,
whether they are technical or non-technical, Inuk or regular or non-regular. Inuk even जो जिसको रेगुलर नहीं के कॉन्टेक्ट स्वेल है, इनू की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रियली दे आर डूइंग वेरी गुड सर्विस। और इसमें जो मेंशन किया है जैसे आशा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी, तो उनका भी पेमेंट बहुत ये है मीजर है। तो उनके लिए भी हम लोग एवरी डिपार्टमेंट जो कॉन्फ्रेंस में जो नेशनल लेवल में होता है उनके लिए भी सारा मिनिस्टर बोलता है उसको भी आगे एक करना है। और ये जो अभी बोल रहे हैं नॉन टेक्निकल उसको भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये बात है रियली हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो अभी का वेलफेयर गवर्नमेंट पेमा खांडू जी का नेतृत्व में, ऑनरेबल DCM जो सोनामेन का नेतृत्व में, और जितना कैबिनेट मिनिस्टर है हेल्थ का बारे में बोलने से रियली फर्स्ट इम्पोर्टेंस देता है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं इसके लिए। तो मेरा ये एक है, अदर्स आगे में हमारा आने से पहले क्या क्या तो उसको तो मैं नहीं जानता है, फिर भी मैं आने का बाद मैं असर से लगा था। इसको भी लेटली हमको बताया है, जस्ट लास्ट ईयर में बताया है। मैं एक ऑफिसर्स था व्हेन आई वाज ZPM ड्यूरिंग 2003, उसमें वो ऑफिसर हमको दिल्ली में डेलीगेट में लीड किया था हेल्थ का पर्पस में, हेल्थ का कुछ कन्वेंशन में उसको नहीं। तो उस ऑफिसर ने लास्ट ईयर हमको बताया है, अभी तक मैं उसको पता मैं अभी तक रेगुलर नहीं, हमको रेगुलर से आ रहे, मैं उसमें आश्चर्य से आ रहे, आप तो उसी में ऑफिसर था, अभी आप कैसे रेगुलर नहीं। तो वो सब हिस्ट्री बताए। उसी कारण से है लास्ट ईयर से हम लोग एक कमिटी बना के यहाँ चीफ सेक्रेटरी को दिया है, चीफ सेक्रेटरी के अंदर में है, और उसको चर्चा करके ही वो भी हम लोग शुरू किया था, मैंने शुरू किया था। तो अभी भी ये बात नहीं है, सारा मेरा ये ऑनरेबल कॉलीग्स लोग भी इंटरेस्ट है, बहुत तकलीफ में ये है। लेकिन उसी के ऊपर में मैं ही चिंता है, मैं डिपार्टमेंट का ये इंचार्ज होके मैं डायरेक्ट टास्क है इनका, ये जो जितना नॉन टेक्नीशियन हो, जो टेक्नीशियन हो, उनका फैमिली से उनसे मैं डायरेक्ट ये तकलीफ मिला है। मैं ही कुछ आप जो सोच रहे उससे पढ़कर मैं सोच रहा है हाँ हमारा डिपार्टमेंट का अंदर में उसको ऐसा करने से ठीक है। तो फिर भी मैं लास्ट काल भी बताया है फाइनेंशियल्स का बारे में, फिर भी जैसे आपने सजेशन दिया है, जैसा हम हयांग मनपी जी ने भी बोला है, ये कुछ वर्टिकल प्रोग्राम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करके क्योंकि अभी कुछ नील जैसा भी हो रहा है फंडिंग, तो उसको कैसा हम लोग मैनेज करना है। तो जैसा मैं सोच रहा है जितना भी ऑफिसर्स है, जितना भी स्टाफ है, उसको ऑलरेडी हम लोग यह एक्सेप्ट किया है, तो उनके लिए जो डाइंग केडर भी हम लोग जरूरी है, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करके उसका अगेंस्ट में हम लोग कॉन्टीजेंसी बा कुछ नहीं करना है। डाइंग केडर में उसका इनकम्बेंसी का टाइम खत्म होने के बाद उसको उस ये पोस्ट को हम लोग आता नहीं, ऐसा एक डाइंग केडर करने से भी उसको भी हम लोग चर्चा करेगा। उसको भी मैं मेरा जो डिपार्टमेंट को हम उसको भी एक्टिवेट करने देगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने देगा। उसके बाद में जो अभी जितना भी, क्योंकि टाइम ज़्यादा लेस हो गया है इसी सब्जेक्ट में, अभी लास्ट ईयर से अभी तक तो ये है हमारा सेक्रेटरीट में 2 फाइल मॉप हो रहा है। उस फाइल को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव किया है, अप्रूव करके जो फाइल मॉप किया है, जो जितना भी जो हेल्थ मिशन का जो नॉन टेक्निकल जो रेगुलराइजेशन नहीं किया है उसको भी 100% सेंटर से ग्रांट करने से ठीक है बोल के उसको अप्रूव करके हम लोग का फाइल ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं कल नहीं पता है। और जितना स्टेट लेवल का यहाँ में हेल्थ डिपार्टमेंट का जो नॉन टेक्निकल का जो रेगुलराइजेशन नहीं हुआ है उसको भी होना है बोल के एक फाइल मॉप कर रहा है, तो उसको भी हम रिविजिट करेगा क्या हो रहा है। तो इसलिए जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो अभी का गवर्नमेंट है, वेलफेयर गवर्नमेंट है, जो स्टेट का सब पब्लिक को ये प्यार करता है, वेलफेयर के लिए सोच रहा है, इवन डिपार्टमेंट के लिए सोच रहा है। तो मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट तो आप जानते हैं हेल्थ इज वेल, वो तो जानता है, तो इसमें टोटल बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो मैं ये जितना भी ऑनरेबल MLAs आपने पार्टिसिपेट किया है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए हम लोग का फाइल भी ऑलरेडी ये मॉप हो रहा है। फिर भी अभी जो न्यू CS आया है उसका साथ हम इसका बारे में बात नहीं किया है, तो न्यू CS भी आया है, उसका साथ में हम लोग डिस्कशन करेगा। जैसा आपने कहा है 1 गो में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें तो एक तो रास्ता तो होगा ही होगा, कहीं भी होगा, तो उसके लिए वो रास्ता हम जरूर ढूंढ लेगा, ये बात नहीं है। तो इसलिए
वन गो में सबको नहीं तो हो पाएगा, फिर भी कुछ स्पेस वाइज में हम लोग जो हो पाता है तो उसको हम कोशिश करेगा। और क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट हो, जो भी डिपार्टमेंट का हेड हो, वो अपना डिपार्टमेंट को खराब के लिए कोई भी नहीं सोचेगा, तो अच्छा के लिए सोच रहा है, जो अच्छा के लिए ले जा रहा है। और जो भी है आपने बोला रियली, मैं काल भी बोला है, ये जितना भी यहाँ नॉन टेक्निकल जो काम कर रहा है, ये सब का सपोर्ट से, ये सब का काम से ही हमारा डिपार्टमेंट अभी भी चल रहा है। तो उसका वेलफेयर को देखना, उसका यूजर्स को देखना, उसका लाइफ सिक्योरिटी को देखना, तो हम डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको हम लोग जो भी है सिस्टम को देख के जैसे भी आगे हम लोग देख लेगा, आप चिंता नहीं करना है। लेकिन जैसे भी हम चाहेगा, हमारा स्टेट का फाइनेंस डिपार्टमेंट का, एयर डिपार्टमेंट का भी हम जैसे बात करने के लिए आपने हमको ऐसा एक स्ट्रॉन्ग वॉइस साथ में दिया है, तो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट को और एयर डिपार्टमेंट को भी हम लोग कैसा ये करना है, प्लेस करना है, वो खुद अपना आप से सुन रहा है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर से तो हमारा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए इसी चंद शब्दों में मैं कहकर मैं अपना आज का भाषण यहाँ में समाप्त करना। थैंक यू वेरी मच। Honorable members, I have received the leave of absence from Sri Biuram Wage and Kumsisi Diso for today's session. I have allowed their leaves. Now we will take up bills for consideration and passing. The Arunachal Pradesh Goods and Service Tax First Amendment Bill 2022. Shri Chaunamen, Deputy Chief Minister and Minister in charge of Tax and Excise and Narcotics, may move the motion for consideration of the bill, the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax First Amendment Bill 2022. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Goods and Service Tax First Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Any member willing to take part? Now Shri Chaunamen, Deputy Chief Minister and Minister in charge of Tax and Excise and Narcotics may reply if any. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh and Service First Amendment Bill 2022 bill be passed. No, sir. We want to, because no one has participated, so for passing we will just put it to vote. Now we will take up for the passing. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we'll take up clause by clause for the consideration of the bill. The question is that the clause 2 to 15 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2 to 15 stands part of the bill. The question is that clause 1 enacting formula and the short title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 1 enacting formula and the short title stand part of the bill. Shri Chaunamen, Deputy Chief Minister and Minister in charge of Tax, Excise and Narcotic may now move for the passing of the bill. Mr. Speaker, sir, I rise to move that Arunachal Pradesh and Service First Amendment Bill 2022 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The Arunachal Pradesh Goods and Service Tax First Amendment Bill 2002 is passed. Now we'll take up the next bill, the Arunachal Pradesh Civil Courts Amendment Bill 2022. Shri Pema Khandu, Chief Minister and Minister in charge of Law, Legislative and Justice, may move the motion for consideration of the Arunachal Pradesh Civil Courts Amendment Bill 2022. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Civil Courts Amendment Bill 2022 be taken into consideration. Any member? Ketujini.
Honorable Speaker, sir. Thank you for giving opportunity to participate in amendment bills being moved by the Honorable Chief Minister and Minister in charge of Tax and Minister in charge Legislative Justice, Government of Arunachal Pradesh. The genesis of the bills, amendment bills, being introduced by the Honorable Chief Ministers is that how the bill has been brought in for amendment to the Arunachal Pradesh Civil Courts Amendment Bill 2022. The Article 50 of the Constitution speaks about the separation of judiciary from executive. The state shall take a step for separate the judiciary from executive to the public service of the state. Since the inception of the state, the government of the state of Arunachal Pradesh was running the judiciary without separating the judiciary from executive. Therefore, the government of Arunachal Pradesh felt it necessary, and in the 2006, judicial service was brought in, and subsequently, the separation of judiciary was brought in 2010. Honourable Member, I think that has been already done. Yeah, if you have something to say about the amendment, therefore, you can do so. just I would like to throw genesis because some of the members do not know about the existence of the law, the courts in the state. So just throw lights on that. However, I will cut short my supporting argument that since the government, the Arunachal Pradesh was running without separation, therefore, all administrative officers, EACs, ADCs, and DCs were functioning judicial officers. And subsequently, after separations, the judicial officers were appointed and started to functioning. And the village authorities was functioning with the spirit of CPC. However, in the CPC, there is no provision for transferring case to the regular courts. Therefore, this amendment is being brought today as because the Civil Courts Act deal with the private controversies, particularly dispute that arises between the individual or between the private business or institutions. However, there is no civil courts in the state for which the Civil Courts Act 2021 was brought in the 6th session. And in the said act, the first proviso of sub clause 3 of section 15 stated that DC were allowed 1 year period to expeditiously dispose of the civil suits pending in the courts. However, after expiry of 1 year, the deputy commissioner could not transfer back to the regular courts, for which this act has to be brought in. Amendment has to be brought in so that proviso can be made where the deputy commissioner can transfer the case to the courts of district judge, junior divisions, as well as senior division, as well as to the additional district judge and district judge. The justification for purpose how this amendment is brought in, if this amendment is brought in, the deputy commissioner will enable to transfer the case to lower courts, that is the poor courts, and additional district judge and district judge will enable to transfer the case to the lower courts below. And since in every district we are not going to establish a regular courts,
for which the officer, local administrative officer has been empowered to transfer back the cases to the village authorities, which has been recognized as customary courts. And that way, the link between officers and the village authority can be maintained. More so, as per the Act, execution power has not been given to the deputy commissioner as well as a village authority. If this amendment is brought in, the execution power is also empowered to deputy commissioner as well as to the village authorities. That way, the judiciary system of the state will flow and have no inconvenience in administering justice. Therefore, I support the amendment bill brought by Honorable Chief Minister inserts legislative and justice. With that view, I conclude my supporting this piece. Thank you. Any more? Honorable Speaker, sir, मैं थोड़ा सा एक भाग लेना चाहता हूँ यहाँ में। माइक खोल दो आपका। ये आपका माइक ऑन करवा दो उनका। मेरा माइक में प्रॉब्लम है। नहीं, आप स्विच काम नहीं कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश सिविल कोर्ट अमेंडमेंट बिल, ये जो अमेंडमेंट बिल जो लाया गया, ये ठीक है, लेकिन उसका ड्राफ्टिंग कैसा डिटेल है हम लोग का साथ नहीं हुआ और थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो कैप्टन जो जिस टाइप से बनाया, मैं विश्वास करता हूँ तो कि सही होगा, लेकिन हम ये बात रखना चाहता है, आपका अभी जो प्रॉब्लम जो हम लोग जो फेस कर रहा है, अर्लियर जो कोर्ट नहीं था, सीजी म्यूजियम नहीं था, उसी जमाने में कोर्ट इतना लोकल प्रॉब्लम जो है ज़्यादा नंबर सॉल्व है विदाउट एनी इकोनॉमिक लॉस। उसमें जो है कि आपका कोई भी सर्कल में, जैसा हम लोग का दूर दराका में, बॉर्डर बेल्ट में, जहाँ में पुलिस नहीं है, पुलिस थाना नहीं है, वहाँ में सर्कल ऑफिसर कोई भी केस होगा वो आपका उसमें मेल ऑर्डर इशू करता है, कोई जजमेंट बना देगा गांवरा लोग को, फिर उसमें ग्रुप करके दोनों ग्रुप को बुला के एक साथ केबल करके फैसला कर देता है। एक दिन, 2 दिन या 3 दिन में वंस फॉर ऑल खत्म। अभी जो सीजीएम और सेशन कोर्ट जब निकलने के बाद में ये तो मेरा ऐसे में एक यहाँ में ये तो एक दिन में केस खत्म नहीं है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इट इज ए हरासमेंट। केस का कोर्ट का केस सिस्टम को भी एक तरह बदलने से चाहिए। इतना लंबा चौड़ा खींचना यहाँ में टाइम भी हरासमेंट है। इसका बाद में आदमी इकोनॉमी जो है कि एडवोकेट हर हेयरिंग में फीस देते जाओ, और ये मैंने इतना लॉन्ग प्रोसेस है। जो बड़ा बड़ा केस है वो उधर जाइए, जो छोटा मोटा केस को, अभी जब छोटा मोटा केस को हम इसको सपोर्ट करता है कि हम लोग का ये इसका जो अमेंडमेंट सिविल अमेंडमेंट बिल से यहाँ से अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इट विल बेनिफिट। ये पूरा पब्लिक का भी, पूरा पंचायत का भी ये डिमांड था। इवन हम लोग लेजिस्लेचर भी तो तंग हो गया, कोई भी कोर्ट केस जाता है तो अरे एडवोकेट का फी देना है, नहीं तो हम अभी अंडर जाएगा। और कहाँ से दार बाकी मैंने एवरी कोर्ट का मेडिकल जाने से भी एमएलए के पास आता है, लीडर के पास आता है, और कोर्ट थाना होने से उधर जाता है। तो ये एक पार्ट ठीक है, उसको मेल सिस्टम करके डीसी हम लोग सिविल कोर्ट बोलने से पंचायत का, जेडपीएम का और ग्राम पंचायत ये लोग केस को सॉल्व कर देगा ये करके, लेकिन ऑफिशियली मॉनिटरिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डीसी सर्कल ऑफिसर। हाँ, वो सिस्टम, वो मेल उधर निकल देगा, वो पुराना जमाना जैसा। और जो केस मैंने बड़ा नहीं है, जिसका जहाँ में मर्डर केस हो गया, जो बहुत सीरियस मैंने ग्रीवियस वाला केस को, तो ठीक है कोर्ट में जाओ। और एक जो है कि पुलिस डिपार्टमेंट का
भी कोई भी आदमी एफआईआर दर्ज कर दिया, डायरेक्ट रजिस्टर कर देना तो गलत है। कोई आदमी अंडा धुंडा बनावट करके डाल देगा, उसको तो पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि ये कितना चाहिए, क्योंकि वंस एक केस रजिस्टर हो जाता है वो आपका सीएम का पास चला जाता है। वहां में अगर जाता है तो बेल आउट करने के लिए एक एडवोकेट चाहिए। एक एडवोकेट तो ऐसा फ्री में नहीं करेगा, बिना फीस में। आपको ये मेंबर, आप ये अमेंडमेंट जो हुआ है उसमें कुछ आपका कोई क्वेरी है या कोई सुझाव उसका? इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका ये अमेंडमेंट बिल में एक नंबर उसको लोकल जितना जो केस हम लोग लोकली जहाँ में सॉल्व कर सकता है थ्रो डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन से, थ्रो मेल केबिंग सिस्टम से हो। अनदर पुलिस थाना में भी थोड़ा एक बदलना पड़ेगा, थाना में भी एक सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा कि जो केस आता है सीधा केस रजिस्टर हो ना हो, पहले छानबीन हो, थाना में ही सोल्व हो। थाना में एक पीआई रख के पॉलिटिकल इंटरप्रेटर है, कोई एक थाना में भी सीधा थाना में भी फैसला कर सकता है। ये छोटा मोटा बॉक्सिंग मारा, टप्पर मारा, वो उसको ये सब को थाना में सोल्व करने के लिए वो भी एक सिस्टम मैकेनिज्म बनाए। दिस इज माय सबमिशन। क्योंकि थाना में जो जिसा रजिस्टर होते हैं, वर्ड रजिस्टर में सीएम के पास जाएगा। तो यह चीज मैंने उसको मेरा 2 पॉइंट है। वन इज पुलिस थाना में केस सोल्व करने के लिए मैकेनिज्म बनाए है बाय डिप्यूटिंग द पॉलिटिकल इंटरप्रेटर, और वहाँ में कोई एक लोकल कमेटी गठन करके या बजट वेलफेयर कमेटी है या कुछ ये है, ऐसा करके वहाँ में एक मैंने बोर्ड हो, और जो मैंने छोटा मोटा केस को वहाँ में सोल्व करने के लिए। इसका बाद में और गांव लेवल में सर्कल ऑफिसर मेल ऑर्डर दे और तो जजमेंट बना के किसा करके एमिकेबली लोकल केस को उधरी खत्म हो, उसको डीसी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर कर, ये इसका मॉनिटरिंग से ये केस हो। तो दिस इज बाय 2 पॉइंट that should cover up in this civil amendment bill. ये कवर होने से तो मैंने ये कवर होना ही बोल के मेरा सजब है। थैंक यू। Honorable Chief Minister would want to reply to his queries, or we should go for consideration? Honorable Speaker, sir. In fact, Honorable Member लोकम दसर साहब ने जो इस amendment bill में participate करते हुए जो concern यहाँ पे जो बताया है, that has been already taken into consideration। और last time जब ये act को जो pass किया था अरुणाचल प्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 2021 में ऑलरेडी हम लोगों का जो जुडिशरी सिस्टम को और भी स्ट्रेंथनिंग के लिए ऑलरेडी ये पॉइंट्स वगैरह उसमें कवर्ड है। अभी जो ये छोटा सा अमेंडमेंट इस बार इसलिए लेके आया, माय कलीग ऑनरेबल मेंबर श्री केंतो जिनी हु हिमसेल्फ इज आल्सो फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड, उन्होंने बहुत अच्छा से यहाँ हाउस को बता दिया कि ये छोटा अमेंडमेंट हम लोग क्यों लेके आ रहा है। इट विल बी जस्ट इन रिपीटेशन, लेकिन तभी भी यहाँ पे मेरे पास में एक नोट है, मैं उसको रीड आउट करना चाहेगा ऑनरेबल स्पीकर आपके माध्यम थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर सर। तो ब्रॉडली ये जो अमेंडमेंट जो लेके आया है, इट एम्स इनटू 4 मेन ऑब्जेक्टिव। नंबर 1, टू एनेबल द डेप्यूटी कमिश्नर टू ट्रांसफर द पेंडिंग अपील्स to the courts of civil judge junior division, the courts of civil judge senior division, in addition to the courts of additional district judge and the district judge as per their territorial and pecuniary jurisdictions. Number 2, to restore the organic link between the village authority and local administrative officers in facilitating and referring back of the cases by the local administrative officers to village authority for settlement. Number 3, to enable the inter-village customary code or apex customary code by whatever name called to settle the appeal arising out of the order passed by lower village authority without directly approaching the regular courts if the parties to the case agreed to. This will lessen the workload of the regular courts. And lastly, number 4, to enable the Deputy Commissioner and the Assistant Commissioners
to execute and enforce the order or decree passed by the village authority to make the system more efficacious and effective. तो broadly ऑनरेबल स्पीकर साहब ये चार जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस अमेंडमेंट बिल को हम लोग कंसिडर अगर कर लेगा तो ये जुडिशरी सिस्टम डिलीवरी में और भी थोड़ा सा इसमें हम लोग स्ट्रेंथनिंग हम लोग कर पाएंगे. So with this, Honorable Speaker sir, I request you to take the amendment bill into consideration. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we will take up clause by clause for consideration of the bill. The question is that the clause 2 to 4 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The clause 2 to 4 stand part of the bill. Now the question is that the clause 1 enacting formula and the short title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think I have it, ayes have it, ayes have it. The clause 1 enacting formula and the short title stand part of the bill. Now Sri Pema Khandu, Chief Minister and Minister in charge of Law, Legislative and Justice may now move the motion for passing of the bill. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Civil Codes Amendment Bill 2022 be passed. Now the question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The Arunachal Pradesh Civil Code Amendment Bill 2022 is passed. There is no more business for transaction today, so I therefore adjourn the House to meet again at 10 a.m. on 8 September 2022, that is tomorrow. Thank you. Thank you, Father. Nani खिलेगा? Application.